میں اپنی پوری مطلب یہ بکھر سے لے کے ملتان جتنی سرائکی پٹی ہے، یہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے سرائکیوں کے لیے، یہ اپنے بچوں کو لے کر آئے. یہ میں جس طریقے سے اپنے بچے کو لے کے آیا ہوں یہ میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں یہی کہوں گا اب خدا کے لیے جن کے گھر کے حالات خراب ہیں نا، روزانہ اپنے ہمارے سرائکی گھر ایسے ہوتے ہیں، ان گھروں میں لڑائیاں ہیں، لے کر آئیں کچھ سیکھیں. یہ آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے. آپ کی میں نے جس دن میں نے آنا تھا اس دن میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی اور میں کوشش کر کے گھر سے نکلا ہوں، جبکہ مجھے سارے گھر والوں نے منع کیا کہ پاپا نہ جاؤ، چونا لگے گا آپ کو، پاپا نہ چونا لگے گا. ایک ہی میرا بیٹا ہے، بار بار اس نے مجھے منع کیا ہے، لیکن میں اس کے باوجود اس کو چھوڑ کے تو یہاں پہ آیا ہوں. جو محبت یہاں سے ملی ہے، مولا جانتا ہے کہ کہیں سے نہیں ملی. جو کیئرنگ یہاں پہ ہے، جو پیار یہاں پہ ہے، میرے خیال کسی اکیڈمی میں نہیں ہے. میرا بچہ جے ڈی سی میں جاتا ہے، ماشاءاللہ وہ ایک ٹرسٹ ہے، اچھا پڑھا رہے ہیں اس کو، تو لیکن یہ میں نے تو جے ڈی سے بھی اچھا فیل کیا. السلام علیکم جی، بہت شکریہ میرے یوٹیوب چینل پر آنے کے لیے. یہ میری کلاس بیٹھی ہے. آج آپ کو یہ ولاگ نظر آئے گا میرے ارن ود اولک یوٹیوب چینل پہ، اور اس میں میں اپنی اکیڈمی کے بہت سارے لوگوں کے آپ کو انٹرویوز دکھاؤں گا. ہم کرتے کیا ہیں یہ دکھائیں گے، کیا سیکھ رہے ہیں، سب کچھ ایک ایک ایچ اینڈ ایوری تھنگ. پتہ ہے میں چاہتا کیا ہوں؟ میرے پاس اپنے بچے آپ نہیں بھیجیں، میں چاہتا ہوں میں سکھاؤں ان کو. میرے یہ شکر شاہکار ہیں، ان کے انٹرویوز دکھاؤں گا. ان بچوں کے پاس اپنے بچوں کو بھیجیں، مجھ پہ اعتبار کریں. مجھے اپنے اس اسٹوڈنٹ پہ اس پہ فخر ہے، مجھے ان اپنے سارے بچوں پہ فخر ہے. مجھے لگتا ہے میں نے ان کو بہترین ٹرینڈ کیا ہے، مجھے لگتا ہے میں نے اپنے بچوں کو بہترین ٹرینڈ کیا ہے. آپ اپنے علاقے کا فیصل آباد کا بچہ ادھر کیوں ذلیل کرتے ہو؟ ادھر ہی میرا یہیں سے کوئی فیصل آباد کا بچہ، یہ میرا میاں والی کا بچہ بیٹھا ہے، میاں والی بچے وہ جو ادھر ہیں ان کو ادھر ہی پڑھائے نا، کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ مجھے ان پہ اعتبار ہے. اور بات تھی تھوڑا شوق نہیں پورا تھیندا نا، تو پھر میں آپ کو پھر ٹرک بتاؤں گا. اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اپنی لوکیشن، گھر کا ایڈریس بتانے والا ہوں. جس کو بہت زیادہ شوق ہے ہر حال میں جی سبتین سے سیکھنا ہے، موسٹ ویلکم. پھر ہم 15 یا 16 یا پتہ نہیں، میرا لڑکا مجھے بتا رہا تھا عدنان، ہم ایک ڈیٹ رکھیں گے جس میں ہم ایک اور بیچ چلائیں گے، لیکن آگے چل کے کوئی 10-15 دن کے بعد. اب انٹرویوز لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ہے کھانا آپ لوگوں کے پاس، تو کھانا یہ والا لیندے رہو تو میں انٹرویو کی اندر آنا. اچھا یہاں پہ کل یہ میرا بیج ہے، کل ان کو چائے نہیں ملی، کل چائے نہیں ملی تھی نا، سو ایم ریلی سوری بھائی. اور آج اس کی اکوموڈیشن میں نے کیسے کی ہے؟ ایک جوس کا ڈبہ نال ایک سموسا، اے تو آپ کو یہ ہے سموسا دے ہوئے نا، یہ ایک ایک میں اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں. اور مزے کی بات سنتے ہیں، میرے پاس بلک میں تقریباً اس وقت بھی لگ بھگ 100 کی تعداد ہے، 100 بچوں کو ایک سموسا اور جوس کا ڈبہ، مطلب تھوڑا ہاں جھال ہو ویسی سرائکی میں کہتے ہیں. تو یہ پیسے کتنے لیے ہیں میں نے ان سے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. سر جی السلام علیکم، کدھر سے ہیں، کیا نام ہے جی؟ کوڑلا جام سے زبیر انجم. بچے کتنی فیس دی ہے آپ نے مجھے؟ نہیں بالکل نہیں دی فیس، بالکل. تو پھر یہ فری ہے یہ سموسے؟ بالکل فری ہے. اچھا ایک چیز سچ بتانی، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، 2 دن ہوئے میرے بچے آپ کو کام سیکھتے ہوئے، کیا سیکھا کچھ؟ باقی 6 مہینوں کا کورس کرواتے ہیں اور میں 2 دن میں 3 دن میں سالہ کروا رہا ہوں، تو لوگ اعتبار نہیں کرتے. آپ نے کیا سیکھا 2 دن؟ جی سر بہت مزہ آیا ادھر، اور بہت سارا کام سیکھا ہے 2 دن میں ہم لوگوں نے. اور آگے بھی کہیں گے جس نے سیکھنا ہے وہ ادھر آئے اور کام سیکھے. بہت اچھی طریقے سے کام سکھایا جاتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے ادھر. مزہ بھی آتا ہے، ہنساتا بھی ہوں. جی سر بہت مزہ. ساتھ میں آپ کو تبلیغ بھی کرتا ہوں. جی سر بہت تبلیغ کرتے ہیں، سختی والی. جی سر. ٹھیک ہے سوری، تھینک یو. اچھا کوئی لڑکا پہلے کسی اکیڈمی میں رہا ہو، آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہے کہیں کسی اکیڈمی میں کو پڑھا ہو؟ یہاں پر ایک بچہ ابھی بیٹھا تھا، وہ اٹھ کے چلا گیا ہے، کدھر گیا ہے؟ اکیڈمی میں چڑھے ہو؟ آؤ میرے بچے 1 منٹ مجھے دو، ادھر کیمرہ صوفی دو. پھر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچے کدھر سے آئے ہو، کیا نام ہے؟ ملتان سے، ملتان جلال پور پیر والا سے. میرے بھائی پہلے ہی میں کہتا ہوں نا، میں پہلے کہہ چکا ہوں. اچھا یہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں نے کیا تقریر کی ہے ابھی؟
लेक्चर दिया है 2-2.5 ना, ना, घंटे ना, का। अभी मैंने क्या कहा कि सच सच बोल। बोलना है, सच के अलावा कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी झूठ नहीं बोलना, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के। मैंने कहा था कि अगर कैमरे पे झूठ बोलोगे तो अल्लाह को खुद तुम जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार नहीं जी हूँ। सर, ऐसी बात है। अब झूठ नहीं बोलना। ठीक 2 दिन इस एकेडमी में हुए हैं बच्चे आपको? है जी, हो गए। 2 दिन में क्या सीखा आपने? ये 6 महीने का कोर्स 2 दिन में जो मैं सिखाने वाले दावे करता हूँ, सच है? सच है, बिल्कुल सच है। चलो, सिप्तान औलख के बारे में अपनी राय दो, ओपिनियन दो। पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया सुन रही है, तब लोग अपने बच्चे इस फील्ड में लेकर आएंगे। सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से भाइयों वाला यानी कि इधर रहते हैं, सारा कुछ भाइयों जैसा है, कोई झूठ भी नहीं है। ये बात काफ़ी सारे लोग कहते हैं भाई ना जाओ, ये चीज़ नहीं सिखाते, झूठ बोलते हैं, आपसे फीस लेंगे वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा कुछ अच्छा है, भाइयों की तरह है। अच्छा, जो पहले किसी एकेडमी में पढ़े हो, कितनी फीस दी थी उधर? 45,000। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के वो 45,000 में जो सीखे थे, यहाँ सिर्फ 2 दिन लगाए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट 2 दिन में। ये ज्यादा बेहतर था या वो? ये ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे हर चीज़ गाइड की जाती है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, टीचर अवेलेबल है, जो चीज़ पूछने जाके पूछ लो। मैं खुद लेक्चर देता हूँ, सर खुद सारा दिन खुद खड़ा रहता हूँ। सर खड़े होते हैं इधर सारा दिन। थैंक यू, बैठ जाओ। और खाने भी खिलाता हूँ। मजे की गल ये देखिए, खाने भी खिलाता हूँ। दे बच्चों को दे। अच्छा जी, एक और दो कुछ इधर आए, थोड़ा रास्ता दो। सुफैन इधर आओ, जो बच्चे मेरे व्लॉगर। मैं अपने भाई अपनी जान के पास आऊँ, आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा सा बच्चे रास्ता दो मुझे, बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरा थोड़ा सा लाइक स्टूडेंट, आज मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ तेरे तो। आज 1-2 सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, मेरा दिल तोड़ा है आपने। दूर करेंगे। ठीक सर, मेरे कुछ 8 से 10 बंदे 15 बंदे मैंने निकाले हैं, मैं इनको एकेडमियाँ बना के देने वाला हूँ, खुद खर्चे करूँगा। क्या ऑफ़र है आपको मेरी तरफ से? अगर एकेडमी बनाओगे तो क्या ऑफ़र है? एकेडमी अगर मैं आप लोग एकेडमी बनाओ तो मेरी तरफ से ऑफ़र क्या है? कि आप 1 महीने का खर्चा, एकेडमी का किराया, और हमें भी जो टीचर होगा उसको आप अपनी तरफ से देंगे पैसे एडवांस जी। और आपने आगे फ्री सिखाना है। 1 महीने का किराया मैं दूंगा, बिजली का बिल मैं दूंगा, इसको 15,000 तनख्वाह जड़ी मेरी जान कट दी है, जो मेरी जेब भी वो भी मैं दूंगा। खुदा का वास्ते अपने इलाके में अपने बच्चों को सिखाओ, फ्री सिखाओ। मेरा मिशन ही कुछ और है भाई। अब उस ट्रोलर को जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं, आज इस वीडियो में जवाब मिलेगा। मैं अपनी पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। सर, 2 दिन की जर्नी आपकी इधर है, आप पहले इस फील्ड में काम करते रहते हो? थोड़ा बहुत अलग है जी, यूट्यूब पे सर्च किया बहुत। अब मुझे ओपिनियन बताएं अपनी राह। 2 दिन की ओपिनियन अपनी, तीसरे दिन का भी रहता है आपका। 2 दिन की ओपिनियन सर सिप्तान औलख की, इसकी टीम के बारे में, इसकी एकेडमी के बारे में, सच अल्लाह को हाजिर नाजिर जान। सर अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बिल्कुल सच बोलूँगा। सर 2 दिन हुए हैं मैं यहाँ आए हुए, और बहुत ही कोऑपरेटिव आपका और आपका जो स्टाफ है, बहुत ही कोऑपरेटिव है सर। जो चीज़ समझ नहीं आती वो इनसे बार बार हम पूछ लेते हैं, तो वो समझा भी देते हैं अच्छे तरीके से। आपका माहौल, यहाँ रहने की जगह सब ही बिल्कुल बेस्ट है, मज़ा है बहुत, बिल्कुल घर जैसा माहौल है। इधर ओपिनियन दो औलख के बारे में। आओ बस, अपने स्टूडेंट भेजो, अपने बच्चे भेजो, आओ इधर सर के पास आओ। हम भी आए, इस हालत में आए हैं, आप भी आओ। अच्छा, डिसेबिलिटी में हो करना, जी सर। मुझे इस बंदे पे थोड़ा सा फ़ख्र महसूस होता है। ये आपके वालिद है ना साथ, मुझे इसके वालिद पे फ़ख्र होता है कि वो मेरे पास एतबार और भरोसा करके लेकर आए। पहले दिन मैंने इनको बता दिया था, आप लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, मैं रिवॉर्ड दूंगा। वो रिवॉर्ड मिला है 2 दिन में? जी बिल्कुल मिला। इल्म जो बांटा है, पहले कहीं किसी दुनिया में यूट्यूब पर सुना था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुना था सर। बहुत 5-5 घंटे के लेक्चर सुने, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं मिली। सर, मैं साबित क्या करना चाहता हूँ, अब ये आगे सुनते हैं, इंटरव्यूज लें। किधर से आए? कोटदू से। सर जी मैं बावल नगर तो हाँ, लेकिन थोड़े तो मैंने एक दुख है सर जी। दुख है कि एक भी वीडियो के अंदर तुसी बावल नगर का नाम नहीं लिया भी बावल नगर ले आओ, बावल नगर दे विच आके वीडियो मतलब मैं आवांगा या अकेडमी खोलो, ये दुख है सिर्फ। बाकी मैं बावल नगर तो आया, तो बावल नगर तो लोगों ने ये भी आख्या कि बंदे पता नहीं की कर वेंदे ने उत्थे, ते मतलब गारा गुर्दे कट लेने, गुर्दे भी कर लेंदे, पता नहीं मतलब इलाका नहीं ठीक है, सारा कुछ गल्लां गारा लैंदियां गल्लां वखरियां सुनियां, खर्चा करके वखरा आया। लेकिन ये दुख है कि एक भी वीडियो थोड़ी मैं चलो मैं ये दुख आपका आज दूर कर दूंगा शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। एक और बात बताओ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, आपको मेरे आपके उस्ताद ने पढ़ाया है? अच्छा पढ़ाया है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके उस्ताद ने कितनी फीस ली आपसे? नहीं कोई नहीं ली, कसम उठाओ, कोई फीस नहीं? अल्लाह की कसम नहीं ली। जी जनाब। कितना? ओए मेरा उस्ताद कितनी देर आपको पढ़ाता रहता है? 1.5 घंटा, तुसी तकरीबन 2 तो 2.5 घंटा का लेक्चर देता, ते उस्तादा ने सिर्फ 1.5 घंटे का 1 घंटे। तो यार खुदा का वास्ता है, मेरे ट्रोलर की वीडियोस देख के अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद ना करो, थानू रब दा वास्ता है। ना भेजे मेरे पास। मैं कहता हूँ
آپ کو مجھے یہ لالچ ہوگی کہ بیٹھے سر میں آتا ہوں آپ کے پاس, مجھے یہ لالچ ہوگی کہ میرے پاس بھیجیں, ارے نہیں اس کے پاس بھیجو نا, یہ شیر کے پاس بھیجو, میرا ٹرینڈ ہوا بچہ, مجھے بھروسہ ہے اس پہ, نہیں بھیجو ادھر. اچھا ایک اور چیز, میں جو بھی ٹیچر آپ کو دکھا رہا ہوں, میرے سلیکٹڈ ٹیچر جو ہیں, 500 روپیہ آپ لوگوں نے ان کو دینا ہے. اس کی وجہ میں 1 مہینے کا کرایہ دوں گا, بجلی کا بل دوں گا, 500 نال تھانوں نہیں موت پونی, اس کا نظام چل جائے گا. 100 بچے کو پڑھائے گا, 50,000 مل جائے گا, 25 گھر دے دے گا, اور 25 اس کے لیے اپنے لیے ضرورت ہو جائے گا. آپ کو 500 سے فرق نہیں پڑے گا. میں 3 دن میں پڑھاتا ہوں, 5 دن میں پڑھا لینا. سمجھ رہے ہو؟ وہ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے میں نے خیر ہے, میں نہیں لے رہا نا کچھ بھی, مجھے چھوڑ دو. اتنے سارے, ایک دفعہ دکھا, اتنے سارے بچوں کو پڑھا رہا ہوں, یہ دیکھیں. اور یہ پہلا بیچ ہے, یہ پہلا بیچ ہے صبح 12 بجے والا. اس کے بعد کتنے بجے بیچ ہے؟ آپ تو یہیں پہ رہتے ہو نا میرے پاس ہی. اس کے بعد کتنے بجے بیچ ہے؟ 2 گھنٹے بعد ہے. 2 گھنٹے بعد. اس میں کتنی تعداد ہوتی ہے؟ اس میں بھی 200 سے زیادہ بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور رات کو کتنے بجے بیچ ہوتا ہے؟ رات یہ تقریباً پچھلے رات تو 12 بجے تک چلا ہے, اور یہ تقریباً اس رات بھی ایسے ہی ہوگا کہ بچے بہت زیادہ ہیں اس بیچ میں. جی جناب, صبح 10 بجے کلاسز شروع ہوتی ہیں, ایک بیچ آتا ہے, 200 بچے آئے ہیں, کھانا کھلا رہا ہوں, سموسے, اور دکھا سموسے کو چنگے ہیں کہ نسل دے, سموسے کھلا رہا ہوں, ساتھ جوس کا ڈبہ دے رہا ہوں, فیسیں نہیں لی, اپنی جیب سے کھلا پلا رہا ہوں کہ میرا بچہ یہاں پہ کمفرٹ زون میں بیٹھے. اے سی دکھاؤ جی, اے سی میں بٹھایا ہوا ہے اپنے بچوں کو. ریوالونگ چیئرز دیتا ہوں جن پہ اسٹوڈنٹس کو بٹھا کے پڑھاتا ہوں. 50,000 سے 56,000 روپے کا میرا انٹرنیٹ کا بل آتا ہے, 10 ڈیوائسیں لگی ہوئی ہیں. یہ سارے خرچے افورڈ کر رہا ہوں اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنی سرائکی پٹی کے لیے. میں کہتا ہوں میں بہت چھوٹی سی چیز ہوں, ذرہ ہوں ریت کا, لیکن انشاءاللہ اپنی سرائکی پٹی میں غربت کہیں نہ کہ میں کسی گھر کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا. مشن ہے میرا. جس کو برا لگتا ہوں, ماں بہن کی گالی دو, پرواہ نہیں ہے, خدا کی قسم جتنی ویڈیوز میرے خلاف بنانی ہے بنا, یہ ثبوت بنا رہا ہوں میں, صبر کریں ذرا. کیا نام ہے بچے؟ جی رضوان علی. کدھر سے آئے ہو؟ بیل سے. سچ بتاؤ 2 دن میں کیا سیکھا؟ سر جی بہت کچھ سیکھا, الحمدللہ اپنے پہ فخر ہے اور آپ پہ فخر ہے انشاءاللہ کہ ہم نا. چوکی فیس لیتی ہے میرے کو؟ سر یہ 1 روپیہ نہیں دیا. یار سمجھو لیتے ہو, یہ سب جھوٹ ہے جو بول. اچھا میں گردے نکال لیتا ہوں, وہ بات. کوئی گردے نہیں نکالتا. کون گردے نکالتا؟ میں پیار کرتا ہوں. بالکل کرتا. اچھا بیزتی بھی کرتا ہوں. بیٹے پیار, استاد ہو, اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا ایک اور چیز سنیں گا, لڑکے سچ بتانا, کدھر سے آئے, کیا نام ہے؟ میں کلور کوٹ روڈی سے. جی علی حمزہ نام ہے. علی حمزہ. میں بیزتی کرتا ہوں. جی بیزتی بھی کرتے ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, مذاق بھی کرتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں. تھوڑا دے ہوئے. آپ بتاؤ کیا نام ہے, کہاں سے؟ ایسا رضا میرا نیم ہے, میں روڈی سے آیا ہوں, منگیرا والی سائڈ سے آیا ہوں. کتنا نالج کے بارے میں 2 لفظ. سر جی آپ کی ویڈیو ہم 6 سال سے دیکھ رہے ہیں, 6 سال سے, جب آپ مطلب کہ غریبوں کی مدد کرتے تھے. پنکی کی ویڈیو وہ میرا ابو بہت شوق سے دیکھتا تھا. ہدایت سے میرے ابو کا نام ہے, ٹیچر ہے ماشاءاللہ. گوھر والا میرے بارے میں. سر جی ہمارا یہ دل ہے کہ ہم 1 ہفتہ نہیں 1 سال آپ کے پاس رہیں, لیکن اداسی یہ ہے کہ آپ 3 دن میں ہمیں بہتر واپس بھیج دیں گے. خدا کی قسم لی جاتے ہوئے تیسرے دن لڑکے لٹرلی رو کے جاتے ہیں. ستین بتارے بغیر مزہ نہیں آئے گا. لڑکے گھر جا کے کھانا نہیں کھاتے. میں لڑکی ہوں. استاد جی آپ نے کھانا کھایا ہے؟ میں آپ کو اسکرین شاٹ واٹس ایپ کے دکھاتا ہوں. ایک دفعہ ادھر آؤ, آپ کو لگے پتہ کس سے بات ہو رہی ہے. آپ سر بیٹھے رہیں, بیٹھے کھڑے نہیں ہو پلیز. السلام علیکم. بسم اللہ وعلیکم السلام. کدھر سے ہیں, کیا نام ہے سر؟ میرا نام سید اظہر عباس ہے, میں لاہور نشتر کالونی سے آیا ہوں. سر جی سچ اوپینین 2 دن کی آپ نے دے. میں نے تقریباً کوئی وہاں کافی ساری اکیڈمی وزٹ کی ہیں. فنانشلی کرائسس کی وجہ سے میں ان کو افورڈ نہیں کر پایا. آپ کی میں نے جس دن میں نے آنا تھا اس دن میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے, اور میں کوشش کر کے گھر سے نکلا ہوں, جبکہ مجھے سارے گھر والوں نے منع کیا کہ پاپا نہ جاؤ, چونا لگے گا آپ کو, پاپا نہ جاؤ, آپ کو چونا لگے گا. ایک ہی میرا بیٹا ہے, بار بار اس نے مجھے منع کیا ہے, لیکن میں اس کے باوجود اس کو چھوڑ کے تو یہاں پہ آیا ہوں. جو محبت جو محبت یہاں سے ملی ہے, مولا جانتا ہے کہ کہیں سے نہیں ملی. جو کیئرنگ یہاں پہ ہے, جو پیار یہاں پہ ہے, میرے خیال کسی اکیڈمی میں نہیں ہے. میرا بچہ JDC میں جاتا ہے, ماشاءاللہ وہ ایک ٹرسٹ ہے, اچھا پڑھا رہے ہیں اس کو, تو لیکن یہ میں نے تو JD سے بھی اچھا فیل کیا. اپروکسلی میں اور میرا بھائی 20,000 روپے ہم کرایہ لگا کے یہاں پہ پہنچے ہیں, اور 20,000 تقریباً ہمارا اور لگ جائے گا, ہم واپس جائیں گے. لیکن جو محبت سے میٹ کے ہم لوگ جا رہے ہیں,
इसका खुदा गवाह है कि और कोई नेमल बदल नहीं आपके अलावा। हमारा सारा जितना भी एसेट है वो आपको देख के खुश हो गए हम लोग। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको तरक्की देगा और भी देगा। तो अल्लाह आप पे फजल करे, करम करे, और बच्चे ऐसे ही आते रहे, ऐसे ही सीखते रहे और अपना मुस्तकबिल जो है वो बनाते रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे लिए ये खुशी का लम्हा है। अगर मैं बाज़ औक़ात मैं अक्सर रो पड़ता हूँ जब इस किस्म का प्यार मिलता है। ये मेरा क्या लगता है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे नाम ही नहीं पता था इनका। मुझे बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं पता। जब इस किस्म की मोहब्बत नहीं मिलती, आप सोचें मेरे अंदर क्या फीलिंग होती होगी। मैं मज़ीद बोलूँगा तो रो पड़ूंगा, लेकिन इंटरव्यू तो लंबा है, वो तो दिखाऊंगा। सर इंटरव्यू ले सकता हूँ? सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। किधर से आए हैं, क्या नाम है? कोटद्दू से मोहम्मद अख्तर खान। सर प्लीज़ 2 दिन गुजारे हैं सिफ्तान औलख की एकेडमी के बारे में, और लोगों को बताइए कि इधर हो क्या रहा है। मैं अपनी पूरी मतलब ये बखर से लेके मुल्तान जितनी सरायकी पट्टी है, ये बंदा जो कुछ कर रहा है सरायकियों के लिए, ये अपने बच्चों को लेकर आए। ये मैं जिस तरीके से अपने बच्चे को लेकर आया हूँ, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। ये मैं यही कहूँगा, अब खुदा के लिए जिनके घर के हालात ख़राब है ना, रोज़ाना अपने हमारे सरायकी घर ऐसे होते हैं और घरों में लड़ाइयाँ हैं, लेकर आएँ, कुछ सीखें। ये आदमी कुछ करना चाहता है, इसका विजन हम सोच ही नहीं सकते, इतना अच्छा। और हमारे लिए मतलब ये दर्द रखने वाला इंसान है, और अपने बच्चों को लेके आएँ और सिखाएं और इधर से कुछ हासिल करें। अपने घरों को जो हालात ख़राब हैं उनको स्टेबल करें अपने, ताकि वालिदैन की जो बच्चे हैं उनका सहारा बने। इसी तरीके से और किसी तरीके से ना ही कोई हुकूमत इसी तरीके से कोई कर सकती है। इतनी जो हमारी बेरोज़गारी है यही ख़त्म कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के 4 दिन दे दें, बच्चा काबिल हो जाएगा, आपका घर चल पड़ेगा। जो न चलने वाला घर है वो चल पड़ेगा। लव यू सर, बहुत शुक्रिया। मेरे सारे स्टूडेंट इसी तरह इतने इमोशनल हैं। मैं रोतलू, मैं निकी निकी बात पे रो पड़ता हूँ, मेरा हर स्टूडेंट भी ऐसा ही है। अच्छा सर ये बताइए, यहाँ पे सिर्फ ऑटोमेशन सिखाई जाती है या कुछ और भी, कोई तबलीग वगैरह कुछ ऐसा कुछ? इसमें बहुत मतलब ये जो है ना, इस माहौल में बहुत ही अच्छी आदत, मतलब जो बातों में मजाकों में और अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, ताकि आगे बंदों को इधर से जाए कुछ और भी घर के लिए कुछ सीख के जाए, दीनी बातें भी सीख के जाता है। मतलब बहुत सारी बातें ऐसे उन्होंने की हैं, वीडियो में आई हैं, ऐसे ही हैं, बहुत से बंदे आकर सीख के गए हैं इधर। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अब मेरा स्टूडेंट, ओए साचरे साए, ओए क्या मेरा स्टूडेंट अब ज़ना कर सकता है? मैंने ऐसे तरीके से मना किया है, टिपिकल मौलवियों की तरह नहीं सर, वो भी अच्छे हैं, हमारे सर का ताज हैं। मैंने ऐसे तरीके से समझाया है कि अब मेरा बच्चा ज़ना नहीं करेगा, मेरा स्टूडेंट बब्बर शेर है, मेरा स्टूडेंट झूठ नहीं बोलेगा, बब्बर शेर है। समझ आ रही है आप लोगों को? मेरी बात समझ आ रही होगी। आगे सुनिए, मेरा छोटा सा चिड़ा इधर आए, क्या नाम है? वकास। वकास 2 दिन में क्या सीखा बच्चे बताओ? हमने यूट्यूब ऑटोमेशन का काम सीखा है। मैं गूगल पे आपकी वीडियो, टिकटॉक पे आपकी वीडियो देखता था, मुझे आप बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं आपके पास आया। मज़ा आया? तो बहुत मज़ा आया। समोसा रगड़ी? ओ जूस ही पी गए? चाह सही है मेरी। इस किस्म के चले सर। आप जी सर, सुफियान सामने आवन पुत्र, ख्याल करें। क्या नाम है, किधर से हैं? जी गडोला रोड बखर से। सर 2 दिन के बारे में थोड़ा सा, 2 दिन आप इधर सीखे हो, कुछ बताएं। सर बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। पहले मैं 2 महीने पहले मैं आया हम तो मिला हम तो सर मैं को आके लैपटॉप दा होना लाजमी। मैं जितों की तो कितन मैं के पहले छोरा रल के ना असा कमेटी पाती है, मैं को आके पहली कमेटी मैं गिनसा क्योंकि मैं लैपटॉप उन्हें को सच दसाया भाई मैं जो ना इथों इतने काम करना है। बात उन्हें मेरी हेल्प की थी, कमेटी नहीं रली, उन्हें मेरी हेल्प की थी। हाँ भाई तुसा पैसे गिनो इधर जेड़े दोस्तां हेल्प की थी, सलाम है। मैं को एक दफ़ा मिलना वाए, एक दफ़ा मेरे घर की रोटी खा वजे, मेरा नमक खा वजे। जी दोस्तों, उन्हें कमेटी नहीं रली, उन्हें मेरी हेल्प की थी। 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार डाल के ना उन्हें मैं उड़ी भाई तू लैपटॉप गिन ते ये उन दोस्तां से क्लैपिंग जेड़े दोस्तां ने हेल्प की भाई तू वन सप्ताह ओ लग दे कॉल वन ते तू ये काम से 2 दिन ही। मैं तो क्या 2 ध्यान दे 6 महीने का कोर्स में तो 2 ध्यान 3 ध्यान सिखांदा पे। सच्चे कूड़े दस बहुत सच है, 100% सच। लोग अपने बच्चे नहीं भेजेंदे, भेजना चाहिए।
ओए अलगोरिथम हो। हाँ बच्चा क्या नाम है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान है, कहाँ से आए हो? क्लूरकोट से आया हूँ मैं। बच्चे 2 दिन की क्लास लिए, शाबाश, हिम्मत कर, हौसला कर। सिप्तान औलक के बारे में 2 दिन पाकिस्तान सुन रहे, बताओ सिप्तान औलक कौन है, क्या है? सर जी 2 दिन हो गए हैं क्लास में, बहुत ही अच्छी क्लासेस हुई हैं और बहुत कुछ सीखा है हमने यहाँ पे आके। पहले बहुत से सवालात मैंने सुने थे, इलाके में बंदे कहते थे ना जाओ, ये हो गया वो हो गया, घर वालों से मिन्नतें करके यहाँ पे आया हूँ। फिर जो मिन्नतें करके आए हो उसका रिवॉर्ड भी मिला है या नहीं? मिला है ना सर जी, बहुत सी कुछ सीखी हैं हमने बातें, बहुत सी बातें सीखी हैं। इधर आओ, ठीक है, आप भी इधर आओ। एक और मौलवी साहब बैठे हुए को भेजो। और भाई कौन मुझे इंटरव्यू देना चाहेगा? और मियाँ अली वाला, ये मियाँ अली, ये भी मैं एकेडमी खोलने वाला हूँ जी। मौलवी साहब बैठे हैं, आ मेरा पुत्र, तू ही दे, आम तू मौलवी है। ओ भाई क्या नाम है, किधर से? सर मियाँ वाली से मोहम्मद फैसल जमशेद। सच सच अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के 2 दिन काम सीखियो, अपनी ओपिनियन राय दो। सर बहुत मज़ा आया है, अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत कुछ सीखा है। इंशाल्लाह आगे भी प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। एकेडमी बनाओ जी सर, इंशाल्लाह फ्री, मियाँ वाली में फ्री इंशाल्लाह। खुश हो, मुझसे राजी हो? सर बहुत। लोग अपने बच्चों को नहीं भेजता यार, बताओ उनको। सर पहले तो मुझे भी लोगों ने कहा है फराड है, उधर ना जाओ, ऐसे करते हैं ऐसे, फिर इधर आया तो तसल्ली हुई है दिल को, भाई वाकई ये कुछ है। अब मैं लोगों को कहना चाहूँगा अल्लाह ताला भाई भेजो उनको जितना कितना हो सके। क्यों यकीन करते हो? बस सर वो कुछ आदत होगी है। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ मेरे बच्चे, क्या नाम है, किधर से हो? मोहम्मद हमाद ना है जी, क्लूरकोट जो है। ओपिनियन, लोग ना कहते हैं कि सिप्तान औलक के पास ना जाना, गुर्दे निकाल लेगा, झूठ है, लूट के खा जाएगा। आप कितना गुर्दा निकाला, कितना लूट के खाया, सब बताओ। कैमरा ने पूरा पाकिस्तान सुन। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, अगे नाल बेहतर वधे हैं तू। हाँ मेरा समोसा ते हो जूस ये उस नाल तू कज वध आइए ते बहुत कुछ मतलब कि सर थोड़े बारे आदे नवाम। इस वक्त मेरी अपनी दुकान उत्थे मैं ना ते बहु आवाम आदि किश सीखी मैं कि 4 दिहाड़े सबर करो जो मैं तू थां को सिखाया सा। शाबाश शेर दा बच्चा, शाबाश। बाकी गल्लां तां आवाम बहु करेंदी सर जी, हुण इत्थे दे सामने दी नहीं देनी गल्लां करेंदे। अच्छा जी हां, ओए एक कहानी ओए ठीक है। ते अल्हम्दुलिल्लाह सर जी बहुत कुछ सीखा है। पाकिस्तान पूरा सुनदा पे, अपने बच्चों को सर भेजन जी लाजमी भेजन। कलूरकोट वाले मेरे कोल ना आओ, एड्रेस सुनो, खुदा दा वास्ते अपने बच्चे स्कूल भेजो। मैंने अपने शागिर्द ते फखर होंदा, पुत्रो एड्रेस दसा, लोग तेरे को बच्चे घेना वैसे कैसे? जी सर, फ्री सिखा इंशाल्लाह। मेरी दुकान है विठोयल ते शाकिर मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शॉप दे नाम ते। इंशाल्लाह दुकान खत्म करके स्टूडियो बढ़ाए सा तो यो काम सिखाए सा। बात 500 रुपये फीस ही दिवाए मेरी खातिर, फीस 500 नाल कुछ गुजारा हो वैसे, ठीक है, शाबाश, वेल डन। हाँ भाई रुद आओ अगा ते मेरे नाल गल करे दियो, ना दसो अपना ते। मोहम्मद ताहिर इकबाल सर जी, क्लूरकोट से। ओपिनियन राय दियो सिप्तान औलक की एकेडमी दे बारे। सर जी बेहतरीन है सर जी, मैं इन्होंने नाल भाई दे नाल होंदा ना सर जी, अस इकट्ठे आए हैं लेकिन सामने बहु मतलब इलाके ना रोका है जी। मैं व्हाट्सएप पे आसान पैसे भाई दी सर जी, मैं वॉइस भी आई है, मैंने भाई को सुनाई है, उन्हें यार इन चबलियाँ मरिंदा केस सिस्टम मतलब, लेकिन सर जी मैं उसने रिप्लाई नहीं किया, मैं यार छोड़ पड़ा हतू सर जी, मतलब असा डूडे रहे खड़ना सर जी, सानू एक चीज़ पता है हतू अरमान लगे सर जी, मैं उसने पीछे रिप्लाई नहीं किया सर जी, मैं दफ़ा मार जी सर। वो ए जे ट्रोलर होंदे उनको सदा होई था पहला लेक्चर सर जी लसन सिख सुना ये बात मतलब वहाँ पास हैं तो होई कुना ते मुंह ते चपेड़े ना सर जी। हां मतलब से कमाल मैं इंटरव्यू लेंगे ना 10 मिनट इंटरव्यू। और भाई हाँ सिप्तान औलक के बारे पूरा पाकिस्तान सुनदा वे, शाबाश। सर मेरा नाम मोहम्मद इक रहमान है, जलालपुर पीर वजह 300 किलोमीटर सफ़र करके, लेकिन मैं बहुत सुने हम कि इतना नहीं होना चाहिए और तकरीबन 1.5-2 साल थी मैं खुद ही सुनता रहेगा कि लोग सीखे ना पे, लेकिन 2-3 महीने करन तो 60-60 हज़ार रुपया गिंदन। मैं खुद मालूमात की मैं 20,000 हिने दी भी बदामा है, लेकिन जी बार आवन पे मेरी वालदा ने भी रोके भाई तक तू ना वन तो अपने जलालपुर वैसे, लेकिन थोड़ा जरा इखलाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कराची जो वीडियो देख तुम्हारे नाल थके आया, मैं कराची जो वीडियो देख के मैं थके आया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कोई से मैं दूर दिहाड़े इतना मेरे को रही है, इतना सफ़र इतना पैसा, मेरे ख्याल है थकावट लाहेगा नहीं चाहिए। ओ सर पैसे की गाल कहने लेकिन मुहब्बत इखलाक है कि तुझा जिमें सिखाने पे थोड़ी ज़बरदस्त दीनी तालीमी तुझा देने में जिमें, ताकि थोड़ी आखिरत बढ़े दुनिया भी बढ़े। जी हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तुझा देते पूरा पाकिस्तान सुनता पे ऐसे पाकिस्तान को अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे डर दिन। सर तुझा ना भेजो हाँ जो थोड़े शागिर्द ना इंशाल्लाह हुण उहे सिखे सन थोड़े को कोई ना आवे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं 5 गिरी चो आया।
رائے دے 2 دن دی اتنے والا کام دور والے کام سیکھے اپنے اولک اکیڈمی دے بارے رائے دیو اتنا 3 سال تو سوشل میڈیا تے کام کریں پہ وہ چیزاں دا سکو اج پتہ لگے جڑیاں دا سکو 3 سالوں تو کوئی نہیں پتہ تے سچی گال ہے مذاق تھوٹ چوکی فیس نہیں تھی کوئی فیس ہی کوئی نہیں دیتی ہے تو سمجھا ہاتھ تو کاش ہماری کھا دی میں نے جی چل ٹھیک ہاں پتر السلام علیکم سر، میرا نام محمد شکیل ہے، میں بکر سے ہوں۔ یہاں آ کر بہت اچھا لگا اور بہت اچھا فیل ہوا۔ ہم نے یہاں سے شاید میں کل یہاں پر آیا ہوں، آج 2 دن میں ہم نے کافی کچھ سیکھا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آگے امید کی کرن بن سکیں۔ السلام علیکم، میرا نام ساجد ہے، کروڑ سے۔ سر بتاؤ 2 دن میں کیا سیکھا؟ 2 دن میں سر جی بہت سیکھا ہے اور انشاءاللہ اپنے علاقے میں بھی سکھائیں گے۔ ادھر ہم ادھر دھکے کھا کے آئے ہیں نا، وہ ادھر سے کوئی بھی نہ آئے، ادھر اتھیں ہی سیکھا سو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور بھائی کوئی انٹرویو پیچھے والے رہ گئے اور میرے پتر 1 گھنٹہ دیا ہوتے نہ دساؤ انٹرویو میں سرائکی دینا چاہتا ہوں کیونکہ میرے علاقے دے لوگ سارے سرائکی۔ سید وجاہت علی شاہ میرا نام ہے، میں پہاڑ پور سائڈ بولا میٹھا پور دے علاقے جی ہاں۔ تو میں اپنے گھر نال بھی لڑ کے آیا ہوں کیونکہ انہوں نے آ کے اصل سنی ودے ہیں بھائی فراڈ ہے یہ ہے وہ ہے، انہوں نے میں لڑ کے آیا کہ میں جرا کوئی شاید بن ویسا ود تھوک میں سیساں جو ایک شے آئی اتنا آ کے جیری شاید میں ڈٹی ہے نا 2 سال میں مدرسے گزارے ان بعد تھوڑی جی تبلیغ نہیں لیکچر کو پہلے یہ ازمان دی نہیں مدرسے کے بعد میں اتنا بہت زیادہ مزہ آیا تو جیری شاید میں اتنا ڈٹھی ہے نا بہت زیادہ مزہ آیا اس جہاز میں۔ مطلب وہ جڑی میں دینی تعلیم دینا ایسے طریقے ہوندی نہ بور تھیندی ہے تے نہ او گل منن کو دل کرے۔ گپ شپ بھی تسا ایڈی تبلیغ کر رہے نا جیری اوقات دل نہ زنا کرے سی میرا اسٹوڈنٹ نہ جھوٹ بولے سی میرا اسٹوڈنٹ کم دے نال گناہ ہی بندہ چھوڑ دے تے پورے پاکستان کو دسا بھائی اپنے بچے بھیجیں۔ پورے پاکستان کو میری یہ گزارش ہے کہ اپنے بچے تے بھیجو، گالیاں بہت سننے ہر کوئی گالیاں کریندا ہے، نال والی منع کرنے دوست ہی منع کرنے بھئی یہ وہ ہے، لیکن جلے تا آ ویسن وا تو آپ دس ایسن جو تھکے شے زندہ باد۔ تھینک یو السلام علیکم سر، کیا نام ہے؟ میرا نام حسنات اللہ ہے۔ کدھر؟ میں کے پی کی سونڈ رسمل خان۔ اچھا کے پی کے والے مجھ سے بڑے خفا ہیں، دھوکھا یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر دوسرا دن ہے بچے آج، اللہ کو جان دینی ہے۔ میرے سامنے کوئی میرے مکھن لگانے کی ضرورت ہے نہیں نا، منڈ کے رکھ جو 2 دن میں سیکھا پورا کے پی کے سن رہے بتا ہے۔ یہ 2 دن میں جو بھی میں نے سیکھا ہے پورے تقریباً 2 سال پہلے بھی میں نے ایک بار یہ چینل والے پہ کام کیا تھا، امیزون کے ایک دوست چلا رہا تھا اس کے ساتھ بھی کام کیا تھا، نیوز چینل میں بھی کام کیا تھا، لیکن یہ جو سیکھا ہے نا یہ 2 دنوں میں میرے کبھی نہیں سیکھا۔ یہ فرسٹ ٹائم بھی ایسے امپریشن یہاں پہ ہمیں جو ملتے ہیں سر سے، جو پڑھانے کا طریقہ جو ہمیں سکھاتے ہیں جیسے نہ بور ہونے دیتے ہیں، ماشاء اللہ سے بہت اچھا ماحول ہے۔ میں آپ سب کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ سب بھی آئیں اور سیکھیں، اپنا مستقبل بنائیں۔ یہ خان والے مجھ سے اتنی عجیب عجیب باتیں میں وہاں پہ سنتا ہوں، ان کا میں کیا علاج کروں؟ سر یہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی ایریا خان والے صاحب ناراض پر ان کی طرف سے میں بھی معذرت کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں سر۔ میرے بھائی ہو، میرے اسٹوڈنٹ ہو، میرے اسٹوڈنٹ میری جان ہو، آپ کو پتہ ہے نا ایک اسٹوڈنٹ میری جان ہوتا ہے۔ میرے جان میں میں ڈی آئی خان انشاءاللہ چلائیں گے، ڈی آئی خان والے جو آپ آنا چاہتے ہیں تو آئے بھی میرے بچے۔ اچھا السلام علیکم، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے۔ کیا نام ہے، کدھر سے؟ اسد عابد ہے، تونسا شریف سے آئے ہیں سر۔ یہ اسٹوڈنٹ مجھے پیارا ہے بھائی، تونسے والے اگر اکیڈمی بنی تو بننا اسی وہ ہیڈ ہی ہو اس نے۔ اچھا ہاں جی، 2 دن آپ نے ادھر سیکھا ہے، اس سے پہلے کام کرتے رہے ہو یوٹیوب پر؟ 2 دن کی اوپینین بتائیں، بڑے لوگوں نے منع کیا ہوگا نوانو بھیڑا گردے کٹ گنس نہیں اور نوانو بکر پیسے چھک گنس نہیں برباد کر سٹے نہیں۔ کتنی فیس نہیں تین پتر روپیہ ہی کینسل تھا سر۔ کیسے سکھائیں دور یار بہت کچھ سکھا ہے یوٹیوب آٹومیشن کا کام ہے، اتھینٹک کام ہے، اتنا آن لگے ہیں لوگ بہت سارے ہیں سکوا کھانے والے فیک کام ہے کوڑے آخر تونسے جو ہے گھر بار چھوڑ کے کام کر کرایہ خرچے سارے معاملات انہوں لیکن وال بھی تائیں مہمان نواز لوگ کی وے واقعی بہت اچھے لوگ تاری سر دل و رسپیکٹ رہنے ساری عزت کی تھی وے بہت بہت شکریہ۔ یوٹیوب آٹومیشن کا کام سیکھے سے بڑا اتھینٹک ورک ہے کیونکہ جس ٹائم بندہ کام کرنے پتہ لگتا ہے جو سر کام واقعی چنگا ہے کیا فیک ہے نا انسان کو علم تھی وے نا سر بہت انشاءاللہ اتھینٹک ورک ہے آؤ تو سر کو کام سیکھو 1 مہینے دے اندر اندر انشاءاللہ تو کماؤن جوگے تھی وے سو۔ تبلیغ تو پہلے ہے سر سار دا لیکچر انہیں 15 منٹ دا تبلیغ دا وہ بالکل لازمی سننے بہت ہی اچھی تبلیغ کرنے انسان دی زندگی سور بنی ہے۔ لو یو یار تھینک یو پتر میں رابطہ چرا میں ہاں میرا بچہ اوے تو ہک تو لیٹ ود ہے نا آج لیکچر آنے سٹارٹ نہیں تھی او بھائی مولوی صاحب نہیں سر میرے کو نہیں۔ السلام علیکم بھیا، کیا نام کدھر سے؟ جی میں محمد عمران میرا نام ہے، میں رمک سے آیا ہوں۔ یار یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جو مجھے لگا ہے کہ میرا پرو لیول کا اسٹوڈنٹ ہے، میرے 7-8 بندے ہیں میں نکال کے ان کا الگ انٹرویو دکھاؤں، یہ مجھے کچھ اس میں نظر آیا ہے۔ یہ آخری دن مجھے لگتا ہے 10,000 والا انعام یہ بندہ لے گا۔ سر عمران بھائی
2 दिन आप काम सीखे हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, सच बताओ क्या सीखा, क्या 6 महीने वाला कोर्स इधर ये झूठ ठग फराडी मैंने चलाई हुई है भाई, बताओ पाकिस्तान को सच। सर मैं ना तकरीबन 3 माह से ये ना स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ ना, फलां यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स है, फलां है, 3 घंटे के अंदर सीख जाएंगे, 3 माह के अंदर सीख जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं देखता रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई चीज़ की समझ नहीं आई प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे आके ना मुझे अंदाज़ा हो गया है कि यूट्यूब कितना आसान काम था और इन लोगों ने कितना मुश्किल बना दिया होता। तो यही अच्छा। सिप्तैन औलख एकेडमी के बारे में 2 लफ्ज़। सिप्तैन औलख की एकेडमी के मेरा यही ओपिनियन है कि जो लोग बेरोज़गार हैं उनको चाहिए जहाँ आएँ सीखें, अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा। ज़रूर सर। सिप्तैन औलख के बारे में 2 लफ्ज़। मैं कैसा बंदा हूँ? आप अच्छे बंदे हैं सर। कितना? बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो जी बिल्कुल, क्योंकि जो किसी का रिज़्क़ का वसीला बनता है ना सर, वो आइडियल इंसान। मेरे टीचर्स, मेरा अमला बिल्कुल ठीक है सर, ताउन करता है। थोड़ी थोड़ी बेइज्जतियाँ करें ना, थोड़ा सख्त भी हूँ, वो तो होता रहता है सर, खैर है ना उसकी, क्योंकि मैं काम सिखाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ मैं, सख्ती मेरा हक बनता है। बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू। अच्छा जी, इसी तरह से आप, ये व्लॉग लंबा है, अब मैं एड्रेस बता दूं आप लोगों को। आप लोग जब बखर आएंगे ना, ज़िला बखर, आपने झांग मोड़ पे या अड्डे पे उतरना है, झांग मोड़ पे या अड्डे पे उतरना है। जितने चेहरे देख रहे हैं, इनमें से अगर कोई चेहरा आपको नजर आए जो, इनसे मेरा नंबर ले लेंगे या एड्रेस पूछ लेंगे या मैं बता दूँ। झांग मोड़ पे उतर के किसी भी रिक्शे वाले को बोलें कि मुझे बिस्मिल्लाह विलास कॉलोनी है, बिस्मिल्लाह विलास वहाँ जाना है, वो कहेगा जी मुझे नहीं पता, मिसाल के तौर पे। तो आप कहना यार जहाँ पुरानी मवेशी मंडी नहीं लगती थी, पुरानी किसी दौर में, वहाँ पर, या दूसरी निशानी दूँ, सिदरा शरीफ वाला दरबार भी है वहाँ पे, 2 निशानियाँ हो गई। तो बिस्मिल्लाह विलास कॉलोनी के अंदर आएंगे, किसी बच्चे से भी पूछ लें, सिप्तैन औलख की एकेडमी आपको ठक से इधर लेके आ जाएगा। ये है मेरे घर का एड्रेस, और एक नंबर भी देता हूँ। डेट नहीं बताई, आगे डेट नहीं बताई। नहीं, अभी डेट अनाउंस नहीं करनी सर, वो हम कर नहीं सकते। और कोई बच्चा आवे जो छुट्टियाँ ले, थोड़ी छुट्टी नहीं हो गई, आओ भाई, आ जाओ। अच्छा, ये है मेरा एकेडमी का माहौल। यहाँ पे ये मेरे टीचर्स बैठे हैं, ये अदनान साहब, आज ज़रा इनकी मजी ठोकेगी। क्यों भाई खान, क्या नाम है बच्चे? अहमद सर। क्या करते हो? सर ये काम करता हूँ इधर। मेरे अंडर काम कर रहे हैं? जी। कितना अरसा हो गया है? तकरीबन महीना हो गया। मैं कैसा बंदा हूँ? सर जी बहुत अच्छे बंदे हैं माशाल्लाह, ऐसा बंदा मैंने पहले कभी नहीं देखा, ना मिला कभी। चलो, ये हमारा अदनान साहब, ये हमारा IT का गुरु माशाल्लाह से। हाँ भाई, आप लोग सब ठीक हो? मेरा टीचर नाम कुमैल अब्बास। कितना अरसा हो, कितने बैच पढ़ा चुके हो? तकरीबन ये 11वां बैच है। पढ़ा रहे हो जी। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम? शान अली। नाम? साइम। ये मेरे टीचर हैं, इनका मैं बाद में आपको इंटरव्यू दिखाता हूँ। अब हम, चलो मेरे टीचर भी अंदर चलो, आ जाओ मेरे बच्चे, सुफियान भाई आ जाओ बच्चे, आ जाओ। क्या हाल है भाई, ठीक हो? ये हम आ गए हैं अपनी एकेडमी से बाहर, अब हम इधर से आते हैं, इधर से आ जाओ। ये हम एकेडमी से बाहर निकल आए, अब हम जा रहे हैं एक और तरफ। मैं कुछ ना कुछ और चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ, वो देखें आप। यहाँ पर देखें, ये देखिए, ये मैंने मस्जिद बनाई हुई जहाँ पे नमाज पढ़ना है। ओए अलगरिदम हो, ये इधर सारे लेटे हुए हैं भाई, लेकिन इनका इंटरव्यू इधर मौलवी साहब को देखें, ये भी उठ के बैठ गए हैं। चले मैं थोड़ा सा इंटरव्यू ले लूँ, किसी को कैमरे पे आने का मसला तो नहीं है? ले सकता हूँ, शाबाश। अच्छा भाई, छोटे भाई, 1 दिन लगाया आप लोगों ने, अभी दूसरे दिन क्लास होनी है। कितने बजे क्लास है? 7 बजे वाली, ठीक है। 7 बजे फिर क्लास है भाईजान जी। रात कितने बजे तक? हम 1 बजे यहाँ से गए थे। आप लोगों को 1 दिन आपने लगाया है सिर्फ, आप लोगों को कसम है आपने सच बताना है, ठीक हो गया? कसम है सच बताना है। जी भैया, क्या नाम है और कहाँ से है? मोहम्मद अब्दुल्ला फारूक, भावलपुर से। पूरा पाकिस्तान सर आपको देख रहा है। 1 दिन में इतना सफ़र, लोग कहते हैं ना मनाए बड़े गुर्दे काट गए, न मनाए पैसा लूट लेंगे, बर्बाद कर देंगे, उसमें कितनी सदाकत है? सर ये बात तो मेरे कज़नों ने मुझे कही है, बाद में फ़ोन करके पता किया है, मेरे वालिद साहब ने पता किया है फ़ोन करके, भाई वो क्या हुआ, सच है, सही है, जगह कैसी है, क्या मसला है। मैंने उनको बताया भाई सही है, पहुंच गया हूं, बिल्कुल फ़िट जगह पे पहुंचा हूं। तो फिर उनको कुछ तसल्ली हुई है। अभी माशाल्लाह 1 दिन का जो काम मैंने सीखा है वो मुझे बिल्कुल फ़िट आता है, बिल्कुल फ़िट आता है। लेक्चर? वो लेक्चर भी माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त था,
और बहुत बात समझ आई है माशाल्लाह। खुश है मुझ पे? बिल्कुल राजी हैं? बिल्कुल लग ऐसा रहा है कि जितना सफर और जलालत थी बराबर हो गई। बराबर हो गया बस। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम और जगह? अरफान अली सालिया से। सच बताएं, एक दिन में सिप्तान औलख का आपको कैसा लगा? सर जी आपका लेक्चर बहुत मुफीद रहा, बहुत अच्छा रहा, और जो पहले क्लास हुई उसमें भी बहुत मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखने को बंदा मिला। कैसा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सोच से भी बढ़कर। जो वहाँ पर लोगों ने आपको कहा होगा ना मनिए ओए, नहीं सर, वो बस वैसे जो नहीं आता उसने तो बोलना है ना सर। मेरे खिलाफ वीडियोस बन रही हैं, वो झूठा है, बकवास करता है, कोई काम नहीं सिखाता। नहीं सर, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके है। क्या नाम है? किधर? आदिल फतेहपुर से। 2 दिन, 1 दिन हुआ है। सिप्तान औलख के बारे में राय दो। जी बहुत अच्छा, आपने मतलब दूसरे जो सिखाते हैं ना यूट्यूबर, आपने उनसे बहुत अच्छा सिखाया कि आपने फुल यूट्यूब के अंदर जाके सिखाया है असल सीन क्या है पॉलिसी का, एआई का, वो चीज़। शुक्रिया दोस्तों। आप एक और इंटरव्यू देना चाहती? क्या नाम है, किधर से हो आप? कोटला जाम से सर। क्या नाम है? मेहमान गुल। अच्छा काम सिखाया जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। मोहम्मद यूसुफ टीजी खान से सर। पूरा पाकिस्तान सुन रहा है आपको। ज़बरदस्त सिखाया सर, आपने प्यार दिया है। जी सर, लव हो गया सर। मुझसे लव हो गया। चलो जी दोस्तों, यहाँ से हम थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे रश बनने लग जाएगा। एक कमरा ये है, एक इधर आ जाए। जी जनाब, इधर ले आओ कैमरा। जनाब एक व्लॉग बना रहा हूँ, आपको कैमरे पे आने पे किसी को इतराज़ तो नहीं है? ठीक हो गया, ओके हो गया। जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बंद करें सर 1 मिनट, उसको आने दो, उनको आने दो। दोस्तों जो भी बैठे हैं, जो मुझसे यहाँ पे काम सीखने वाले, एक तो 2 तो मेरे मेहमान भाई बैठे हैं। आप लोगों से पहले ही कह रहा हूँ, जो बताना है सच बताना है, सच के सिवा कुछ नहीं बताना। इधर मुँह कर बच्चे पीछे। क्या नाम है और किधर से? एहसान अशरफ बखर से। इधर से है ना? कोटला जाम से नहीं थे आप तो? नहीं। अच्छा बखर से हो। सच बताओ, 2 दिन 3 पहले सीखे हुए हो ना, 2 दिन हो गए हैं आपको। सच बताओ औलख एकेडमी के बारे में। लोग कहते हैं झूठ है, ओए कुछ नहीं सिखाते, लाइक इस किस्म के रूमर्स हैं, वीडियोस बन रही हैं, और गुर्दे काट गिनन होए, और पैसा छीक गिनन होए, उसके बारे में पब्लिक को बताओ। सराकी डाल दे। हाँ सराकी। ए मैं कूड़ मरे दिन सारे माशाल्लाह दूर दिहाड़े थी गए, इतने आते पे बड़ी इज्जत मिलती पे सानू, ते माशाल्लाह काम भी अच्छे तरीके नाल सिखाते पे सानू। अगर एक शायद समझ नहीं आती वला वला उसको रिपीट करें सानू। एक टीचर नहीं 20 टीचर सानू देना सिप्तान साहब भी। ठीक है, शाबाश। भाई इसनू सही करके गाइड करो। अच्छा बकायदा 2-2 घंटे का लैक्चर भी दे देन। मैनू एक लैक्चर ही समझ नहीं आई, मैनू आखा गया तुसा दूजा लैक्चर अटेंड करो, रिपीट किया गया भी ताकि समझ आए। ये बाकी सारे कूड़ मरे ने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सही सुबह जुड़ जा करे। ये देखिए जी, हमारा भाई मेरे पास ही सोता है, मैं भी इधर इनके पास ही कभी कभी चक्कर लगाता हूँ। तो ऊपर देखा है एसी चल रहा है, हाँ जी, तो इधर आ जाते हैं। मैं अपने बेस्ट स्टूडेंट्स के पास और मैं अपने कुलीग के पास आ गया हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है, किधर से? सर मोहम्मद दनियाल मियाँ वाली से। 2 दिन आपने काम सीखा है, कोई ओपिनियन दो एकेडमी के बारे में, सच सच। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा, इधर का माहौल भी बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, और इस सबसे अच्छा इनके अखलाक हैं। ठीक है सर, बहुत माशाल्लाह कोऑपरेट करते हैं, जो चीज़ 10 बार भी पूछें तो 10 बार भी बताते हैं। ठीक है, मतलब दूसरी एकेडमियों से हम डिफरेंट हैं? सर बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा निज़ाम है, क्योंकि यहाँ वो चीज़ें बताई जाती हैं जो करोड़ों रुपए लगा कर भी लोग नहीं बताते। इससे बड़ा और क्या सबूत दिया जाए? मेरी जान, मेरा दोस्त, मेरा बॉस, मैं शायद इनको आगे बॉस भी रखूं, क्योंकि मैंने इनकी अपने पूरे स्टाफ से बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी और कहा है लड़कों ने कि बॉस इस बंदे को हमने जाने नहीं देना। ठीक है, सो अभी हमारी वो लड़की हमारी वो डेट नहीं हुई, तो अब मैं बात करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम और जगह? सर अज़हर अब्दुल्ला फ्रॉम बहावलपुर, और मैं भी टीचर हूँ। और काफ़ी रूमर्स थे कि जी बक्कर ना जाएं, वो गुर्दे निकाल लेते हैं, ये वो, तो सब बाकी झूठ है। बहुत अच्छा शहर है बक्कर, और ख़ास तौर पे सर का जो इखलाक है ना, ये मैं यहाँ आके पहले वीडियोस में हम देखते थे कि यार पता नहीं स्क्रिप्ट चल रहा है या क्या, लेकिन माशाल्लाह वाकई सर की जो है ना, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और जो चीज़ ये सिखा रहे हैं, हम सब उम्मीद से हैं कि हम 3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जो हम सब की लाइफ चेंज करेगा। तो इंशाल्लाह ये मैं तो कहूँगा कि सब लोग आएँ, और हम भी पूरी उम्मीद हैं कि हम जो सीखेंगे, मैं तो खुद टीचर हूँ, तो मैं आगे जाके भी लोगों को सिखाऊँ। गलत दे दिया आपने। नहीं भैया, आपने इधर नहीं आना। ये लड़का दिखा दिया है, क्या नाम है था, क्या बताया था? मोहम्मद दानियाल मियाँ वाली। मियाँ वाली, इसको पकड़ो, इधर नहीं आना।
ज़लालत है सफ़र, जलील हो जाओगे। इधर रहना होटलों पे थोड़ा अजाब है। मैं कुछ और चाहता हूँ ना, मेरी मेंटेलिटी कुछ और है। इधर नहीं आए, इसी के पास सीखें। आप किधर से थे सर? भावलपुर। नाराज़ तो नहीं होंगे, एक दो चीज़ कर लूँ? भावलपुर वालों, अगर आप तक ये वीडियो पहुँची है, रिक्वेस्ट है आपको एक, इधर आने वाली तकलीफ होगी, मैं हाजिर हूँ। अच्छा, इस बंदे के पास खुदा की कसम मैं आऊँगा, मैं लेक्चर दूंगा वहाँ पे आके। ओके, इधर नहीं आओ, ये बड़ा सफ़र है। इसने जलालत देखी, आप नहीं देखो। ओके, मैं वहीं आऊँगा, इनके पास आके लेक्चर भी दूंगा, इनामात भी अपनी जेब से दूंगा। अब समझ आइए, सब कुछ होगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सर, भावलपुर की लोकेशन अगर आपको कोई वहाँ पे मिलना चाहे तो किस तरह से वहाँ पर मिले आप? सर छोटा सा शहर है और स्टूडेंट बेस्ड है, तो मुस्लिम टाउन में हम इंशाल्लाह कोई प्लान बनाएंगे और आपको मैं वहीं पे आऊँगा भैया। जी आपको इनवाइट करेंगे, बल्कि हमारे शहर के लिए खुशी की बात होगी। तो हम आप जिस तरह कहेंगे फिर वहाँ पे हम सेटअप लॉन्च भी कर सकते हैं। चलो जी, मेरी एक और अकेडमी तो ओपन हो गई जी, लिटरली 15 दिन के अंदर अंदर। सर इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 15 दिन के अंदर अंदर इनके शहर में जहाँ ये बताएंगे। हम पहले यहाँ पर टिकटॉक पर अपनी वीडियोस बनाएंगे हर अकाउंट पे, और उसके बाद इनके अकाउंट होंगे, मतलब पूरी आवाम को बताएंगे। और 10 से 15 दिन के बाद मैं जी आप इनके घर इनका नमक खाता हुआ देखोगे। ये मेरा वादा है। भावलपुर वाले, भावलपुर है ना, भावलपुर वालों, पुर वालों, मेरी राम और रे लाल मिल गई है, सुबह से बोल रहा हूँ। और ये वाकई बहुत अच्छा हो जाएगा अगर सर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने सफ़र किया है तो मुझे पता है यहाँ काफ़ी गो कि इन्होंने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है, लेकिन अगर वहाँ पे सेटअप हो जाए दैट विल बी ऑसम। ऐसा ही होगा। और तकरीबन 8 से 10 लड़के हैं जो जहाँ पर मैं अकेडमियाँ बनाने जा। भैया तैयार रहो, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर इस व्लॉग को यहाँ पर रोकते नहीं है, क्योंकि मैं अपनी कुछ जर्नी, कुछ स्टोरी आप लोगों को नीचे चल के अपना अलग में एक रूम में बैठ के आप लोगों को सुनाऊंगा कि अकेडमी बनी कैसे थी, स्टोरी क्या थी, असल में कहानी क्या थी, ताकि आप लोगों को हकीकत का पता हो। ये लोगों के रूमर्स सुनकर अपने बच्चों को घर में कैद अल्लाह दा वास्ता ना करो। हाँ जलालत है ना सफ़र वाली, ख़त्म कर दिया ना मैंने, हर इलाके में एक सिप्तान पैदा कर दिया है मैंने। ना भेजो मेरे पास, उधर ही पढ़ाओ। मकसद मेरा समझिए कि गुर्बत हमने ख़त्म करनी है। हम गालियाँ देते हैं अपने वज़ीर आज़म को, हम गालियाँ देते हैं अपनी जनाब डोनाल्ड ट्रंप को, हम मतलब उन लोगों को हम कोस नहीं, अपनी ज़बान गंदी करो, क्यों जहन्नम में जाते हो? छोड़े उनको, एक दूसरे की हम मदद करके हम अच्छा जिएंगे इंशाल्लाह। हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी को बुरा कहने की। अपने इलाके के MPMNA को गलत कह रहे होते हैं, अरे नो यार, वो भी जानबूझ के तो हमारे लिए कभी भी गलत नहीं कर रहे होते ना, उनकी भी अपनी बहुत सारी मजबूरियाँ होती होंगी। सो दैट्स वाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है। बाकी वीडियो कंटिन्यू करते हैं, मैं नीचे जाता हूँ तो आपसे मज़ीद बात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसका 2-3 रीज़न वजह हो सकती है। एक वजह ये कि आप काम सीखना चाहते हो, दूसरी आपका मुझ पे एतमाद है, आप जानना चाहते हो ये बंदा करना क्या चाहता है, और तीसरी ये वजह है कि आप ज़िंदगी में कुछ वाकई कुछ करना चाहते हो। और देखिए दोस्तों, बहुत सारे बड़े बड़े दावे आपको मेरी वीडियोज़ में नज़र आते हैं। आएँ फ्री सिखाऊँगा, आपकी ज़िंदगी बना दूँगा, ये वो, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें आप सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे। और यस ऑब्वियसली इसके मुताबादिल आपने क्या देखा होगा, आपने मेरे ख़िलाफ़ काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, लोगों को देखा होगा। और इवन आप यहाँ आने की जब कोशिश भी करोगे ना, तो तब भी लोग आपको क्या कहेंगे, और झूठ होता है यार, कौन ये 3 दिनों में क्या ऐसा, एक बच्चे को बोतल का ढक्कन बंद करना ना आए, आप लोग इतनी बड़ी चीज़ सीख के आ जाओगे कि कमाना शुरू कर दोगे। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुननी पड़ेंगी जब आप आने की कोशिश करोगे, या आपका दिल ही नहीं मानेगा, कौन आजकल फ्री सिखाता है, और भी बहुत कुछ। उसमें ना आपको जो लोग कहेंगे वो क्या होगा, ज़्यादातर कॉमन लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं क्लेरिफाई करूँगा। एड्रेस आप ऑलरेडी पहले वीडियो में देख चुकी हो, मेरे पूरा वर्क आप देख चुके हो कि किस तरह से मैं एकेडमी चला रहा हूँ, और सबूत के तौर पर मैं ईच एंड एवरीथिंग दिखाने की कोशिश भी कर चुका हूँ, आगे समझाता हूँ आपको। सो दैट्स वाई प्लीज़ इसको आगे कंटिन्यू रखिएगा, ताकि आपको मेरा असल ख्वाब समझ आ सके, असल चक्कर समझ आए कि कर क्या रहा है ये बंदा, तब आप ज़्यादा एतमाद कर पाओगे। और एड्रेस ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, और परफेक्ट मैं लोकेशन एड्रेस इस आगे भी एक चीज़ और पिन कर दूंगा, तो ताकि आप सीधा यहीं पर आ सकें। और अपना पर्सनल नंबर भी दे देता हूँ आपको, अब ठीक है, क्योंकि अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको पर्सनल नंबर देना बनता है मेरा, तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ। जी जनाब, तो सवालात होंगे। सबसे पहली बात, जो लोग आपको मना करने वाले हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। या आपके दिल में शक व शुबहात हैं तो बिल्कुल 110% ठीक है। रीज़न ये है कि सर आजकल के दौर में, इतनी अफरा तफरी के दौर में, कौन किसी की हेल्प करता है, कौन किसी की मदद करता है? फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाली जो बात है, कौन भाई, नहीं, कुछ तो दाल में काला है।
कुछ ना कुछ ये करेगा, कुछ हमारा गुर्दा निकाल लेगा, कुछ ऐसी वीडियोस भी मैंने देखी, या हमसे कोई पैसे ऐंठ लेगा, खींच लेगा। ये कैसे हो सकता है? मुझे आप एक चीज़ बताएं कि एक बंदा वीडियो में अलन एलानिया कह रहा है कि आइए जी मुझे काम सीखिए, मैं फ्री सिखाऊंगा। अब जब आप आएंगे कि मैं आपको कहूँगी हाँ जी उन्हें 1 लाख रुपया काट, तो आप मुझे निकाल के दे दोगे? नो वे सर। आप कहोगे हाँ भाई तूने तो फ्री बोला हुआ है, तो क्यों इस तरह से कर रहे हो? आप तो लेके चले जाओगे, आप तो वापस चले जाओगे, आपको झूठ बोल रहे हो भाई तुम। पहली बात ये। सेकंड बात, सबसे बड़ा जो अक्सर मैं एविडेंस कहता हूँ, लगभग 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के जा चुका है। अगर यार कुछ भी यहाँ पे ऐसा गड़बड़ होता, जस्ट 1 सिंगल वीडियो तो आती। अब ये नोट करें, जहाँ मैं 3000 बंदा सिखा चुका हूँ, वहाँ आपको मेरे खिलाफ मेरे किसी स्टूडेंट की सिंगल वीडियो नहीं नज़र आ रही जिसमें वो ये कह रहा हो कि यार अब झूठ था, या ये गलत हुआ है, ये धोखा था। क्या मैं यहाँ पे जादू करके भेजता हूँ उन पे? नहीं यार, क्या हो गया? मैं यहाँ पे मेहनत करता हूँ, 3 दिन के अंदर जो मैं बताता हूँ ना वो मैं आगे समझाता हूँ आगे। यहाँ पे कुछ तो ऐसा दिया जाता है उनको जो घर जाके वो अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करते हैं। और ये मुमकिन नहीं है। ये किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं कि 3000 से अब आप बच्चा सीख के जाए और उनमें से एक भी रेशो होनी चाहिए थी ना, और 3000 में से कोई 100 बच्चा तो ऐसा लाजमी होगा ना जिसको समझ नहीं आई होगी, जिसको मेरी बुद्धि पसंद नहीं होगी, जिसको मेरे यहाँ का माहौल पसंद नहीं होगा। यार जस्ट 1 सिंगल वीडियो भी आपने नहीं देखी होगी। अगर मेरे किसी स्टूडेंट की भी आपने वीडियो देखी होगी तो वो ये कहता हुआ नज़र आएगा, आइए मुझसे सीखिए, जैसे सर सिप्तान ने मुझे सिखाया है, सिप्तान भाई ने मुझे सिखाया, आए मैं आपको सिखाता हूँ। दूसरा सबूत, एविडेंस। अगर मेरी ये लालच होती कि आप मेरे पास आएँ और मैं आपकी जेब से कुछ निकाल लूँ, आपका गोश्त पाट लूँ या कुछ ऐसा कर दूँ आपके साथ, तो खुदा के बंदे मैं हर वीडियो में ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई खुदारा आपके इलाके में 5-7 बंदे सीख के मुझसे जा रहे हैं, अल्लाह के बंदे इनसे सीखो। इधर आओगे तो सफ़र करोगे, रहना खाना पीना, सफ़र, दूसरा देश, पराया वतन, ये चीज़ें आसान नहीं हैं। तो ये यहाँ की लॉयल्टी है, मेरे दिल की लॉयल्टी है, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ भाई आपके ही इलाके में मैं बंदा ट्रेन करके भेज रहा हूँ। ठीक है ये सिप्तान औलख नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो आपको गाइड करेगा, वहाँ से आपको एक रोड मैप मिल जाएगा। हाँ देन आप कर सकते हो यार अपना काम को प्रो करना चाहिए तो सिप्तान के पास चलते हैं, हाँ थम्स अप, तब समझ आती है। तो मैं तो बार बार वीडियोज़ में, अक्सर आपने 90% वीडियोज़ देखी होगी, जो बच्चा मुझे ट्रेंड होता है, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ चल यार मेरे साथ खड़ा हो, तेरे अकाउंट पे वीडियो बनाते हैं, अपने अकाउंट पे वीडियोज़ बनाता हूँ। ये दूसरी एक आपको थोड़ा सा एविडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह से जो भी लोग आपको कहते हैं कि आप जाएंगे तो धोखा होगा या ऐसा कुछ, वो अपनी जगह पे ठीक है। उसकी रीज़न मोटी सी रीज़न सिर्फ यही है सर, मुझे जो लगता है कि आजकल के दौर में क्योंकि भलाई है नहीं, तो जहाँ भलाई होती नज़र आती है तो हम कहते हैं दाल में काला होगा, गड़बड़ है कुछ। नो सर, मैं अक्सर कहता होता हूँ अपने लेक्चर में भी, जो चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, आप जानते हैं, मैंने गायब नहीं होना, मैं अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ और ये मेरा ख्वाब है। मुझे पता है फेलियर आएंगे, बड़े ट्रोलर आएंगे, गालियाँ देंगे, हाँ बड़ा तो फन खान आ गया, मुल्क सीधा कराने वाला। लेकिन सर किसी चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से तो होती है ना, मुझे ज़ीरो ही समझ लें, मेरी शुरुआत ही समझ लें। मैं कुछ ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ जो, मतलब मोटी बात करूँ तो फिर मैं रोतलू बड़ा हूँ, मैं रो पड़ता हूँ और आप लोग उस पर भी हंसते हो कि रो पड़ता है। बराबर से चलें दोस्तों। दरअसल ये ना, ये एकेडमी ये ऐसे बनी नहीं थी, इसका मकसद कभी भी किसी भी सूरत में, ये हमारे दिमाग का प्लान नहीं था, हमने सोचा हुआ नहीं था कि हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे और इतने खर्चे बर्दाश्त करेंगे, ऐसा सीन नहीं था। अब मेरे घर में एक माजूर बच्चा है जी, गुंगा है, बहरा है, मेरा छोटा भाई है मोहसिन, वो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, एक हाथ से भी वो माजूर है। तो ना मैंने अपनी माँ को उसके साथ बड़ी तकलीफ़ों में देखा है, बहुत मुश्किल में देखा है मैंने अपनी माँ को उसके साथ। 24 साल का हो गया, अभी भी अम्मा के साथ ही सोता है। तो मैं क्योंकि एविडेंस हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने अपनी माँ को थोड़ा सा मुश्किल में देखा उसके साथ, तो मुझे उसके बाद हमने फैसला किया था कि हमने कुछ करना है। ये बात तो 2021-22 की है, जो ये प्लान हमारे दिमाग में था। मेरा एक दूसरा दोस्त है जी, जो एडमन है मेरा, जैन नियाजी, आपको अक्सर वीडियोस में भी नज़र आता होगा, तो उसके साथ भी कुछ ऐसे ही सीन है सर। उसका छोटा भाई है, अब 21 साल का हो चुका है। मेरा भाई खा पी खुद लेता है, बाय द वे बात समझ लेता है इशारों से। वो तो बेचारा पैरालाइज है जी, वो पड़ा है बेड पे। अभी एकेडमी में ही चल रही है इस वक्त, एकेडमी शुरू है, आपको शायद पीछे नज़र भी आ रहा हो कैमराज में।
تو وہ بیچارہ بھاگ کے جائے گا, ابھی اس کے بھائی نے پوٹی کر دی ہوگی, اسے نہلائے گا دھلائے گا, 21 سال کے بھائی کو صاف ستھرا کرے گا, پیمپر لگائے گا, جو بھی کچھ کرے گا, پھر واپس آئے گا. وہ کھانا اس کے بنا نہیں کھاتا, وہ بھاگ کے جاتا ہے, اسے کھانا کھلا کے واپس آتے ہیں. فرشتہ ہے جی میرا دوست. صرف یہی نہیں, میرے ذہن دوست کے جو والد صاحب ہیں انہیں برین ہیمریج ہے, پرابلم ہوئی تھی انہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے. تو اس کی وجہ سے وہ بعض اوقات نہیں, دن میں 1-2 بار بڑے ہائپر ہو جاتے ہیں, گالیاں دینے لگتے ہیں, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. بیچارہ بھاگ کے جاتا ہے, رات تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو وہ شاؤٹ کرنے لگتے ہیں, لڑنے لگتے ہیں. انہیں وہ لگاتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, شوگر والی جو ہوتی ہے وہ دوائی ان کو لگاتا ہے, کوئی انجیکشن ہوتا ہے وہ لگاتا ہے, انسولین, اور ساتھ اور بھی بہت ساری پرابلم. میں آئی وٹنس ہوں اپنے دوست کا کہ یہ اس کی پاؤں کی مالش کر رہا ہوتا ہے والد کی, اور اوپر سے اس کو مار رہا ہوتا ہے اس کا والد, مارتا بھی رہتا ہے, اور نیچے سے میرا دوست پاؤں دباتا رہتا ہے, ابا نہ کر ایسا کہتا رہتا ہے, اور وہ اوپر سے مارتا رہتا ہے. تو میرا دوست فرشتہ ہے. ہم نے نا بڑا پیسہ بنایا آٹومیشن سے, آپ امیجن نہیں کر سکتے, بہت پیسہ بنایا ہے. تو تب ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا زین نے اور میں نے کہ یار نا کبھی نہ ایک ایسا کام کریں گے کہ اپنے علاقے کے سارے معذور بچوں کو اکٹھا کریں گے, ان کو ٹریننگ دیں گے, ان کو ٹریننگ دینے کے بعد پھر آگے سون چیزیں چلیں گی. ہم 50-60 ایسے نا جو معذور بچے ان کو آن لائن فیلڈ میں ٹرینڈ کر دیں گے, جیسے ہماری ماں نے, جیسے ہمارے والدین نے تکلیف دیکھی ہے, کسی اور ماں کو تکلیف نہ دیکھنی پڑے. یہ ہم نے خواب دیکھا تو ہم نے یہ سلسلہ چلایا. ہمارا مائنڈ تھا 40-50 بچے آ جائیں گے, ٹوٹل 7 کے 8 آئے تھے. اور تب ہم نے نا, اب میری شروع کی جا کے ٹک ٹاک پہ ادھر ادھر ویڈیوز دیکھو گے تو میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کے گھر معذور بچہ ہے تو مجھے دے دے, میں آپ کو پیسے دیتا ہوں, 2-3 دن میں نے سکھانا ہے ان کو, اور یہ کام ہے بھی 2-3 دن کا. تو وہ ٹوٹل 7-8 آئے تھے. وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, سیریسلی ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ کب کیسے کیوں ہو گیا کہ لوگ میرے محلے کے آنے لگے, پھر علاقہ کے آنے لگے, پھر ضلع سے آنے لگے, پھر پورے پاکستان سے آنے لگے. وہ فری چلتا گیا. اب میں کو فرشتہ تو ہوں نہیں, یا میں کو بہت زیادہ امیر زیادہ تو ہوں نہیں, ایک مڈل کلاس فیملی کا تھوڑا سا اپر مڈل کلاس ہوں گا بھائی, سوشل میڈیا سے کمانے والا ہے تو عام سا انسان ہوں. تو کیونکہ گھر میرا اپنا تھا جس میں ہم نے اکیڈمی بنائی, اور ساتھ ہی یہاں پہ گرین میٹر میرا لگا ہوا تھا, ساتھ کچھ لیتھیم بیٹری لگی ہوئی تھی, سولر پینل لگا ہوا تھا. سو دیٹس وائی مجھے بجلی بھی تھوڑی سی فری مل جاتی تھی, اور مائنر بل آتا تھا, اور گھر بھی میرا اپنا کرایہ تھا نہیں. تو اس وجہ سے ہم نے نا یہ جب اکیڈمی بنائی تھی تو شروع ہوتی چلتی گئی فری والا کھاتا. مجھے کچھ اتنا زیادہ برداشت نہیں کرنا پڑتا تھا. ہاں وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگ بھگ 10 سے 12 ہزار آرام سے ڈیلی کا خرچہ برداشت کرنا پڑتا. 2-3 آفس بوائے رکھے, صفائی والا رکھا, مینٹیننس, اے سی چل رہا ہے تو پرابلم آ جاتی تھی, کبھی بجلی میں کبھی کیا, مطلب مختلف قسم کی پرابلم کی وجہ سے بہت سارے ایڈیٹر ہائر کیے, ٹیچرز ہائر کیے, کام بڑھاتا گیا نا. تو 10 سے 12 ہزار, بٹوین 15 ہزار, تو کبھی کتنا, یہ ہمیں خرچہ افورڈ آہستہ آہستہ کرنا پڑا. اور اللہ دے رہا ہے جی, وہ دے رہا ہے اور چیزیں چل رہی ہیں. میں بھی بتاؤں گا تو آپ کو پتہ نہیں شک دوڑے گا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. 2 مرلے ابھی میں نے مین روڈ پہ اپنے سیل کر کے یہ اکیڈمی کو چلایا, اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنی اس طرح ان چیزوں کے لیے, کیونکہ مجھے لگا کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں. مجھے فیل آ گئی کہ میں تو کمال کام کر رہا ہوں یار, بہت اچھا ہو گیا. تو یہاں تک آپ کچھ چیزیں سمجھ آ گئی کہ میں یہ کیوں کر رہا تھا. اچھا, ایک تو یہ مجھے بینیفٹس تھے, ٹھیک. دین ہم نے کرائیٹیریا یہ بنایا کہ جو بچہ بھی ہمارے پاس سیکھنے آئے گا ہم اسے آپشن دیں گے. 3 دن کام سکھائیں گے, 27 دن اسے گھر بھیجیں گے. 26-27 دن ایک چینل کی پیدائش اور عمر کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور مطلب وہ 27 دن یہ نہیں تھا کہ کوئی میں چیز مال بنوا کے کچھ چیزیں اپنے پاس رکھتا. وہ رگڑا دینے کی کوشش ہوتی تھی کہ رگڑا لگاؤ, ان کو ٹریننگ دو, سکھاؤ, اور پھر ان کو پالش کرو. ساتھ سروس ہوتی تھی, مطلب کال پہ یا میسیجز پہ کوئی پرابلم آتی تھی تو دور ہوتی رہتی. اور دین 27 دن کے بعد انہیں ایک مونوٹائز چینل دے دیا جاتا تھا کہ ہاں بھائی یہ مونوٹائز چینل ہے, کماؤ اس پہ. چینل اپنے پاس رکھتا تھا, اور ساتھ ہی بینک وغیرہ ان کا, ایڈسن ان کا, سب کچھ ان کا لگا کے ان کو دے دینا. جیسے ہی کمائی آتی, پہلی کمائی تو وہ میری پیمنٹ واپس کرتی. تو استاد محترم یہ آپ نے مجھے چینل لے کر دیا تھا 10, 20, 50 کا جتنے کا بھی, یہ آپ کی امانت واپس. کہانی ختم. تو ساتھ ہی میں نے کہتا تھا یہ کرو, آپ کی مرضی, اپ ٹو یو, میرے پیسے واپس کر دو, چینل چلاؤ. میں جو احسان کر سکتا تھا میں نے کر دیا. ساتھ ہی میں کہتا تھا کہ اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر ایز اے پارٹنر آپ میرے ساتھ کام کرو, آدھا آپ کا آدھا میرا. آپ صرف اپلوڈنگ دو, ریویوز جانے, کاپی رائٹ جانے, چینل جانے, ہینڈلنگ جانے, سب کچھ جانے, میں جانوں, میرا کام جانے, یہ میں کروں گا. تو لگ بھگ 90-80% لوگ جو ہوتے ہیں وہ میرے پارٹنر بن جاتے ہیں. آپ امیجن کریں سر کہ کیا سمارٹ ورک تھا. میرے پاس تقریباً 52 بچی ہے, یتیم لڑکیاں ہیں, تقریباً 1.5 سال سے میرے ساتھ چل رہی ہیں.
कभी 3,000 सबको सैलरी दे दी, 3,000 करके, कभी 12,000, जिस तरह से मुझे रेवेन्यू जनरेट, उनसे काम भी लेते रहता हूँ, वो घर बैठी हैं अपने काम करती रहती हैं, तो कभी कितने तो कभी कितने, उनको जो मेरी इस्तिताअत होती है, और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो कहती है जी हमारे घर ही क्यों नहीं पैदा हुए, जो मेरी औकात है, ये मेरे कब्र का सवाल है, मैं आपको इसकी जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता। तो वो मैंने प्लान बनाया कि जब मेरे पास तकरीबन लगभग कोई 1,000 चैनल भी अगर मोनेटाइज आ जाता है तो 50 बच्ची को कहूँगा हाँ भी बच्चे ये आपके पास चैनल है, 5-5 10-10 चैनल रखो अपने पास, शाबाश, और इनको हैंडल करो। बिल्ली सब कुछ सिखा सकती है सर, शेर को चढ़ना नहीं सिखाएगी। कुछ ना कुछ फिर भी मैं रख लेता था ताकि जब चैनल मेरे पास रहें तो मैं उनको बूस्ट कर सकूँ। ट्रिक्स हैं मेरे पास, यू नो वेरी वेल, अगर आप मुझे जानते हैं पुराना, तो मैं 2014 से इस फील्ड में हूँ। मैं जानता हूँ कि चैनल के डॉलर्स को किस तरह से ग्रो करना है। बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स मैं यहाँ पे दे भी देता हूँ, कुछ चीज़ें हम हाइड रखते हैं ताकि आप मेरे पार्टनर रहें और कल को मैं भी कमाता रहूँ। तो मेरा ये स्मार्ट वर्क है। आप इमेजिन करें सर 1,000 यूट्यूब चैनल अगर हो, किसी को ना मेरा बिजनेस मॉडल नहीं समझ आ रहा, सबको तकलीफ ये है कि ये कर क्या रहा है। बहुत बड़ी बड़ी अकेडमियाँ बंद हो गई हैं। अभी हमारी रिसेंटली मीटिंग हुई है, बहुत बड़ी बड़ी अकेडमियों वालों ने मुझे अप्रोच किया, बुलवाया, वो भी अहवाल देता हूँ आपको। खैर, तो 1,000 चैनल भी अगर हो और हर चैनल एक $100 कमाए, यूट्यूब से $100 निकलते हैं बाय द वे। वैसे ये मुमकिन नहीं है कि मेरा शागिर्द और $100 कमाए, क्योंकि $92 तो हम सिर्फ खर्चा रखते हैं। आपका नेट इस्तेमाल होता है, आपका लैपटॉप इस्तेमाल होता है, आपकी बिजली इस्तेमाल होती है, आप खाना पीना करते हो, टाइम लगाते हो, ये कुल मिला के मैं $92 लगभग खर्चा रखता होता हूँ। ये मेरे खैर कोर्स की बात है, ये मेरे लेक्चर की बात है। तो $100-150 वाला चैनल तो वैसे ही मेरा स्टूडेंट है, मैं गिफ्ट कर देता है कदनों को। वो यार ये बात है, मैं कहता होता हूँ अपने स्टूडेंट को, लाख दी लानत तो सिर्फ का शागिर्द और तो $150 कमा रहा है। तो ये खैर ये लेक्चर की बातें मैं यहाँ पे डिबेट करना नहीं चाहता, मुनासिब नहीं है। सो आप समझिए बात को कि अगर हर एक चैनल $100 भी कमाए, लेट्स सपोज मिसाल के तौर 1000 चैनल है, $1 लाख बनता है जी महीने का, 3 करोड़ लगभग पाकिस्तानी बनते हैं सर। ये जस्ट इमेजिन किया है मैंने और मिनिमम बताया है आपको। 3,000 बच्चा तो सीख के जा चुका है मुझसे, क्या ख्याल है? 1.5 करोड़ पाकिस्तानी, 50 लाख रुपए में उन बच्चियों को हर महीने 1-1 लाख रुपए भी सैलरी दूँ ना, करोड़ रुपए की बचत है। और करना क्या है? देन मैंने आज के 6 महीने बाद 7 महीने बाद मैं चेयर पे बैठूँगा, बच्ची के पास चैनल है आपका, देख रही है, 9 बजे ज़हीर ने अपलोडिंग दी है, 9 बजे अपलोडिंग नहीं आई, साथ साथ वो ट्रिक्स भी लगा रही है जो हम किसी को नहीं बताते, बूस्ट कर रही है चैनल को, और साथ वो चैनल को जस्ट वॉच कर रही है। ज़हीर की अपलोडिंग नहीं आई, एक पर्ची लिखेगी, उस मोबाइल के पीछे लिखा हुआ है ज़हीर, चैनल का नाम और उसका मोबाइल नंबर। एक पर्ची लिख के दे दी कि ज़हीर ये नंबर, ये चैनल का नाम, सर इसने अपलोडिंग नहीं दी, टेबल पे आ जाएगी। पर्ची उठाऊंगा, कॉल, हेलो और ज़हीर वेयर आर यू फ्रॉम, किधर है तू, बच्चे अपलोडिंग क्यों नहीं दे रहा, तू नहीं देगा अपलोडिंग तो कमाएंगे कैसे। मेरा सिर्फ काम उन बच्चों को फॉलो करना है, और साथ में इतनी बड़ी बड़ी ऑफर देता हूँ कि जो मेरी कम्युनिटी का हिस्सा है, जो मेरा पार्टनर है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, यू नो, आपके घर में, मेरे घर में 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार से ज़्यादा होगा नहीं, ये सेविंग है हमारी सीरियसली। और अगर 50 हज़ार है तो बहुत बड़ी बात, मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर आपके घर में, मेरे पार्टनर के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी को चेकअप करवाने लेकर जाना है, किसी को बाहर लेकर जाना है, भाईजान परेशान क्यों होते हो, आपका उस्ताद बब्बर शेर है ना, मुझे कॉल करो, अगले 3 मिनट के अंदर 1 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर दूंगा आपको, और लेके भाग नहीं जाना, मतलब उधार होता है वो आपका। मेरे पास चैनल है, हर महीने पेमेंट आए, कभी 10 निकालो, कभी 20 निकालो अपने हिस्से में से, उस्ताद जी आपकी अमानत वापस। सर स्ट्रेस लेवल मेरा स्टूडेंट कम करे, मेरा पार्टनर परेशान ना हो, बस मर के रख, कमा के खिला मुझे, समझ रहे हो मेरी बात। किसी को उधार देना है, मुंह पे मार, मुझे बोल, मैं दूंगा। अब मैं इतना अमीर हूँ यार, ये मैं करोड़ों रुपए लगा रहा हूँ, अरे नो, क्या हो गया है, ये रोटेशन है, ये आपका ही पैसा आप पर लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, मैं आपका ही पैसा आप पे लगा रहा हूँ। हमेशा स्मार्ट वर्क कीजिए सर, ये मेरा स्मार्ट वर्क। और इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें थी, मैं सराइकी पट्टी को IT की दुनिया में कुछ ना कुछ रोशनास कराना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, खुदा की कसम मानता हूँ कि 3 दिन में, यस रियलिटी है, बहुत कुछ नहीं दिया जा सकता, लेकिन सर आई एम सुब्हानल्लाह, क्या हो गया है, 3 दिन अटेंड तो करें। मैं आपको पॉलिसी, आपको AI, आपको एल्गोरिदम, आपको IP के बारे में, आपको RPM CPM के बारे में 3 दिन के अंदर 3 लेक्चर देता हूँ सर, और एक लेक्चर मेरा 3 घंटे का होता है, विद कॉपी पेंसिल सर, आप सब कुछ नोट करते हो। देन मेरी टीम, अगले मेरा लेक्चर पहले एडिटिंग होगी मुकम्मल तौर पे, उसी पर मेरा लेक्चर होगा, नेक्स्ट डे फिर पूरी रात मैं सोने नहीं देता,
समझ रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब करता हूँ, यार काम करो, वो ट्रेनिंग करें, देन फिर मेरे पास आएँ, अगले दिन फिर आएंगे, फिर वो एडिटिंग और बाकी चीज़ें उनका जो होंगी, फिर मेरा लेक्चर होगा, अगले दिन फिर नेक्स्ट उनका एडिटिंग देखी जाएगी, चैनल बना के दिया जाएगा या उनको चैनल बनाना सिखाया जाता है, और RPM और CPM का लेक्चर होता है। और RPM CPM का लेक्चर मैं 1 करोड़ रुपए का किसी को ना दूँ, सिर्फ अपने पार्टनर को या अपने स्टूडेंट को देता हूँ। $1 का $10 बनाना बताता हूँ वहाँ में। बहरहाल ये मेरे नॉलेज की बात है, मेरे इल्म की बात है, आप इस चीज़ को छोड़िए। और साथ साथ ही मैंने ही ये ख्वाब देखा कि यार हम एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे जिसमें लगभग 50-1,000 लोग होंगे, और मेरा स्टूडेंट सिटी समझते हैं ना, या चुटकी पर मेरा स्टूडेंट मेरे हुक्म की तामील करता है। उस्ताद मेरा बब्बर शेर है, उस्ताद मेरी मोहब्बत है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो कम्युनिटी मैंने बिल्ड कर ली तो सर सरायकी पट्टी में किसी की बेटी इस वजह से घर नहीं बैठी होगी कि जेवर नहीं है या दहेज नहीं है, नहीं बैठने दूंगा। हर महल्ले का MNA MPA बनाऊंगा अपने तौर पे। किसी महल्ले में कोई बंदा भूखा सोया तो सिर्फ औलख कम्युनिटी पर लानत होगी। ये मेरा ख्वाब था, मैंने ख्वाब देख लिया यार अपनी इस सरायकी पट्टी में मियाँ वाली से लेकर लियाकतपुर, सिरपुर, अलीपुर तक एक कम्युनिटी बिल्ड करूँगा जिसके अंदर मैं इतना कुछ करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको बोर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन यस मैं चाहता हूँ कि ये आप तक पहुँचे, आपको पता चले कि ये बंदा करना क्या चाहता है। साथ साथ आप नहीं सोच सकते हो, मेरी उसी कम्युनिटी का बजट होगा जिसमें मैं कम से कम 100 एक बंदा उसका मेंबर रखूँगा जो उसका हेड होगा, इंक्लूड मी। ये मेरे ख्वाब है, मुझे नहीं पता आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या हो सकता है। कल यूट्यूब शुरू बैन हो जाए तो फिर मैं क्या करे सां, ये एक अलग चीज़ है, पॉलिसी चेंज होती रहेंगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन सर मानिए कि मेरी सोच, मेरी मंजिल मैंने कुछ सोची हुई, और अभी आपको इस चीज़ में हंसी आ रही होगी कि देखो ये करना क्या चाह रहा है पागल, लेकिन सर किसी चीज़ की भी शुरुआत ज़ीरो से होती है। लाइक इमरान खान कभी तो ज़ीरो था, लाइक कुछ भी यार, किसी चीज़ पर भी डिबेट करूँ आप नाराज़ हो जाओगे, कुछ तो कभी ज़ीरो से शुरू हुआ था, तो मुझे ज़ीरो ही समझ लीजिए। आज कर रहा हूँ, हो सकता है रब ने मुझे कामयाबी दी, तब्दीली आप ऐसी देखोगे कि मुझे ज़रूरत नहीं है हुकूमतों की। क्यों हुकूमतों को गाली दे के अपनी ज़बान गंदी करते हो, क्यों जहन्नुम अपने आप पर फ़र्ज़ कर देते हो। ज़रूरत नहीं है आपको उनको कुछ कहने की, वो अपना काम कर रहे हैं। हमसे, हमारे घर का 4 अफराद हैं, 6 अफराद हैं, हमसे अपने घर के फैसले होते नहीं, हम बैठ के हुकूमतों पे ब्लेम कर रहे होते हैं। छोड़े उन्हें अपना काम करने दें, आप अपना काम करें, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम एक दूसरे का साथ देंगे, और इंशाल्लाह चीज़ें आसान होंगी। मैं करके दिखाऊंगा जी। अब देखिएगा मेरी कम्युनिटी से हुकूमतें कर्ज़े मांगेंगी, ये वक्त आएगा। अभी हंसी आ रही है ना, प्रॉब्लम नहीं है मुझे, हंसें आप। बहरहाल जी आपको मेरे पास आना चाहिए, आपको काम सीखना चाहिए। 3 दिन का कोर्स होता है, 27 दिन घर काम करना होता है। उस 3 दिन के अंदर हत्तन कोशिश होती है कि आपको उस लेवल का काम सिखा दिया जाए जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। अच्छा राइट नाउ जी प्रॉब्लम्स आई हैं मुझे कुछ, मैं आपको बताता चलूँ। जितने भी बड़ी एकेडमीज़ वाले थे जिन्होंने 50 या 1 लाख रुपए फीसें रखी हुई थी, ऑब्वियसली मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, पर्चे होने लगे, मुझे बुलाया जाने लगा, थ्रेड्स आने लगी। ये सोशल मीडिया पे बता कर मैं अपनी वो क्यों औकात को क्यों कम करूँ, और डर ये लाइक मैं ऐसा क्यों फील दूँ, बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन ठीक है, कुछ बड़े भी पड़े और उन्होंने कहा नहीं भाई कुछ भी हो आपको फीसेस तो रखनी पड़ेंगी हर हाल में, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये कम्युनिटी, ये दुनिया बैलेंस से चलती है, विदाउट बैलेंस नहीं चल सकती। बेटा आप अगर फीसें नहीं रखोगे और आपके पास बल्क में इस तरह स्टूडेंट आएगा तो जो दूसरे रोज़ी रोटी वाले हैं उनका क्या। और रियलिटी भी यही है, क्योंकि वो जगह उन्होंने किराए पे ली होती है, उनके बिजली के बिल होते हैं, उन्होंने तनख्वाहें देनी होती हैं, बहुत कुछ करना होता है। तो मेरे लिए चीज़ें आसान थी, उनके लिए आसान नहीं। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, बताएं हुक्म करें। बात तो खैर 20,000 से शुरू हुई, फिर 10,000 पर आई। राइट नाउ फिर जो फाइनल हुआ डिसीजन मैं आपको बता रहा हूँ, उसका कहीं विजुअल भी आपको लगा के दिखा दूँगा। फाइनल डिसीजन ये हो कि मैं जी 5,000 फीस रखूँगा। आपको बता दूँ सर, आपने सिप्तैन औलख के पास अगर आना है सीखने तो 5,000 रुपये आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जिसके अंदर 3 दिन का कोर्स होगा। लेकिन मैंने साथ ना एक शिक ऐड कर दी, आप 3 दिन काम सीखोगे सर मुझसे, ठीक है। और 3 दिन के बाद अगर आप कहोगे कि जी मैंने इस लेवल का काम सीखा है कि थम्स अप कमाल हो गया, तो वो 5,000 मुझ पे हलाल हो गया, ठीक। और अगर आपको लगता है नहीं यार फजूल रहा है, कोई कख नहीं समझ आए, ओके, आप अपनी 5,000 फीस वापस लेकर जा सकते हो। इससे बड़ी ऑफ़र शायद दुनिया में, पाकिस्तान में कहीं नहीं मिली होगी। तो मैंने साथ ये ऐड कर दिया कि चले यार किसी का तो, अगर किसी को समझ ना भी आए तो बेचारे का 5,000 ज़ाया तो ना हो सकता है ना। थम्स अप, समझ आ रही है, शाबाश। तो
5000 फीस मस्ट है जी। आप आएंगे, आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फ़ीस जमा करवाएंगे। मैं कोई सर्टिफिकेशन नहीं देने वाला आपको किसी किस्म की कि मैं आपको ये लिख के दूँ कि जी हाँ जी अब आप यूट्यूबर बन गए हो, या मैं आपका यूट्यूब। अच्छा 3 दिन काम सीखोगे, प्रो लेवल को होगा इंशाल्लाह। साथ में तबलीग भी बहुत सारी करता हूँ। और साथ ही आप एक और चीज़ इंक्लूड कर ले खुदारा कि आगे मैंने आपको सर्विस देनी है। जो 5000 साफ दे रहा है वो वापस लेके चला जाएगा, उसे सर्विस नहीं मिलेगी। ओबियसली सर्विस उनको मिलने वाली है जो फ़ीस जमा करवाएंगे, ताकि मैं अपने बच्चों को सैलरियाँ दे सकूँ साथ। और साथ ये रखें कि ये मुमकिन नहीं है कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो आपको कहे कि ये काम करो और तुझे कामयाब। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये नहीं लिख के दिया जाता कि यहाँ से पढ़ के जाओगे और जॉब लग जाएगी। आप MSc कर लो, MA कर लो, डबल MA, ट्रिपल MA कर लो, कोई इस चीज़ की एविडेंस नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी या आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। हाँ मैं सिखाता हूँ। ये वादा है आपसे कि जाते हुए मैं आपसे ये पूछूंगा कि मुझे रियलिटी बताओ, इन 3 दिनों में सीखा क्या। अगर तो दिल 2 + 2 = 4, अगर मैं ऐसे समझाऊँ कि हाँ उस्ताद जी 4 होता है, और आप कहोगे जी थम्स अप सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, देन तो सर फिर मेरा वो फीस भी बनती है और देन मेरा क्रेडिट भी बनता है। लेकिन अब ये कहो कि जी 3 दिन काम करने के बाद करोड़ों रुपया या लाखों रुपए जो कुछ कमाने लग जाओगे, आई एम रियली सॉरी। इस उम्मीद से मेरे पास खुदा मत आइएगा कि कल को आप मुझे ब्लेम करेंगे सिप्तान साहब तो हदा के 3 दिन लहसो कमासो। नो वे सर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ मैं रोड मैप दे दूंगा आपको, मैं कमाल का रोड मैप दे दूंगा। आप खुद अपने अल्फाज होंगे आपके कि सिप्तान साहब आपसे प्यार हो गया, सिप्तान साहब लव यू हो गया कि मुझे रोड मैप मिल चुका है, मुझे पॉलिसी का पता है, अब मैं कुछ भी कर दूंगा। समझ आ रही है सर। और राइट नाउ इन दिनों में आज 17 जून है या 18 जून है, आई थिंक सो, मुझे परफेक्ट डेट याद नहीं है, शायद 2026 मुहर्रम है। तो अभी पॉलिसीज़ भी थोड़ी सी अपग्रेड हुई हैं, तो जितने भी चैनल एडसन के बड़े इश्यूज़ बन रहे हैं, तो मैं अभी परचेजिंग मैंने बंद की हुई है चैनल्स की। ये जो 27 दिन के बाद चैनल देने वाली बात है, इसमें भी मैं सख्ती करता हूँ कि रोज़ाना आपने 4 वीडियोज़ अपलोड करनी है। पेट में दर्द है, आई डोंट केयर, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फौतगी हो गई है, मेरा मसला नहीं है बच्चे, ये आपका मसला है। घर जाओ अपनी छोटी बहन को काम सिखाओ, फौतगी होगी आप जाओ छोटी बहन को कहो 100 रुपये लै अपलोडिंग तो कर दें। वो से सारी प्रॉब्लम्स आपकी हैं। मुझे डेली बेस पर 4 वीडियोज़ अपलोड चाहिए, 15 मिनट लगते हैं एक वीडियो पर मैक्सिमम। हाँ अब बहुत ढीले हो, आधा घंटा लाल है। 4 वीडियोज़ 2 घंटे का काम है। डेली बेस पर 4 वीडियोज़ अपलोड दोगे, किसी दिन 3 वीडियोज़ हुई तो मेरे पार्टनर आप नहीं बन सकते, मैंने देना रगड़ा आपको। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी भी कह रहा हूँ। अब मेरे पास जब आते हो तो मेरा लेक्चर होता है, उस दौरान भी कहता हूँ कि अगर किसी दिन 3 हुई, 2 तो बहुत दूर की बात है, ये छुट्टी हो गई, नहीं लूँगा आपको एज ए पार्टनर। सांस रुकती है, रुके, अपलोडिंग नहीं रुकनी चाहिए। ये फिर लेक्चर की बातें हैं, ये कुछ सख्तियाँ होती हैं। और बाकी सिप्तान वाला किस लेवल का काम करता रहता है या और चीज़ें बहुत सारी मैं अपनी एक्सपोज ना ही करूँ तो बेहतर है, क्योंकि लोग ट्रोलिंग करने लगते हैं यार। अब देखो जो मैंने इतना कुछ बताया, अब इस पर ट्रोल होगी बहुत सारी कि बड़ा आ गया तू पाकिस्तान को सीधा करने वाला, बड़ा आ गया तू लोगों का हमदर्द, पहले अपनी चीज़ें। ओ भाई 2016 से लेकर 18 तक खुदा की कसम जितना मैं बड़ा गुनाहगार रहा हूँ आप सोच नहीं सकते हो। मेरी गुजरी ज़िंदगी जैसे है वो मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। माथा टेका है जाके रब के घर में, सजदा किया है जाके खाना काबा के सामने, रब से माफ़ियाँ मांगी हैं। दोस्तों को भी कहता रहता हूँ मेरे लिए दुआ किया करें कि रब मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। गुनाहगार ज़िंदगी गुजर रही भी गुजरा अभी भी। दोस्तों के साथ अभी चाय पीने जाता हूँ तो गपशप में गाली भी निकल जाती है मुँह से। फरिश्ता नहीं है आपके सामने बैठा, लेकिन आई डोंट नो मेरे अंदर ये कैसे एलिमेंट्स जाग गए हैं कि मैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। इवन राइट नाउ मैं 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर गया हूँ एक यतीम खाने में। मुझे पता चला कि वहाँ पे कुछ बच्चे इश्यूज़ में थे, तो मैं चला गया। दरवाज़ा खटखटा के मैं अंदर चला गया। उन्होंने भी बुलाया मुझे, मैंने रब्ता किया, उन्होंने कहा आ जाएँ, तो मैं चला गया दरवाज़ा खटखटा के अंदर। यार वहाँ पे बच्चों को देखा है, उनकी ज़िंदगी देखी है, मैं जो कुछ कर सकता था मैं उनके लिए करके आया हूँ। आपको भी कहूँगा लिया सिरातिया हॉस्पिटल है बाईपास रोड पे, तो उसके पीछे ये इनकी फाउंडेशन है, जरीना फाउंडेशन टाइप ऐसा कुछ है। तो मैं तो जो कर सकता था किया, आप लोगों को भी कहूँगा। वहीं ना वहाँ एक मासूम सा बच्चा था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा वो 6 साल होगा 5 साल होगा, छोटा सा बच्चा था, मैं शायद वीडियो भी लगा दूँ कहीं। मैंने पूछा हाँ बच्चे कैसे हो, ठीक हो, खुश हो? जी 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 जी। कि अम्मी अबू कहाँ हैं? तो चुप हो गया ना। एक कैमरा नहीं था ऑन मेरे ख्याल में इस वीडियो पर, इस बात पर कैमरा ऑन नहीं था। चुप हो गया। तो मैंने दूसरी तरफ घूमने लगा तो मुझे पकड़ लेते हैं। अंकल, मैंने कहा जी मम्मा और पापा मर गए हैं। बड़ा दुख हुआ।
میں نے کہا اچھا یاد آتے ہیں؟ چپ کر کے ایسے بیٹھا بیٹھا مما بہت یاد آتی ہے. میں گھومنے لگا تو مجھے کہتا ہے انکل, دوبارہ مجھے بازو پکڑتا ہے, انکل کہ بچے ہیں؟ میں نے کہا یس ہیں. آپ کو پاپا بلاتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے پاپا بلاتے ہیں. انکل آپ گھر جاتے ہو, ان کے لیے کچھ لے کر جاؤ گے؟ پانچ سال کا بچہ تھا سر. خدا کی قسم دل کرتا تھا کہ اپنا دل نکال کے اس کو دے دوں. اب میں نے اسے جپی ڈال دی. میں نے کہا بیٹا تو میرا بیٹا ہے, کیا ہو گیا, حکم کر, کیا چاہیے میرا بچہ؟ انکل مجھے فروزن والی آئس کریم کھانی. پتہ نہیں کتنے دنوں سے نہیں کھائی ہوگی, دل کر رہا ہوگا یار اس کا. چالیس 50 بچے تھے. شیر ہے آپ کا استاد, ببر شیر. 17,000 15,000 کی طرح کی آئس کریم لگی, میں سب کو لے کے گیا, میں نے کھلائی. جو کچھ اور بھی کر سکتا تھا, کیا میں آپ کے سامنے ڈھنڈورے پیٹوں. میں نے جا کے ان کو جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا. لیا میں یہ بنی ہوئی ہے, جہاں یتیم خانہ دیکھے چلے جایا کریں, اپنے بچوں کے ساتھ جائیں, کھلونے لے کر جائیں, جو اوقات ہے گھر میں 2 روٹیاں ایک لے کے چلے جاؤ یار ان کے لیے. یہ باتیں نہیں سن پاؤ گے, برداشت نہیں کر پاؤ گے. میں نے کیے. سوری, میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا استاد برا بندہ نہیں. میں صرف بتاتے ہوئے میری یہ حالت ہے, تو آپ سوچیں جب اس قسم کی کچھ چیزیں دیکھتا ہوں گا تو میری کیا حالت ہوتی ہوگی. آپ کا استاد برا آدمی نہیں ہے, میں 2 نمبر نہیں ہوں یار. بھروسہ رکھے یار مجھ پہ. میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کے لیے, اپنے سرائکیوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے. اور کسی نہ کسی نے تو کرنا ہے یار. کوئی تو سٹیپ چاہو, خدا دے بندے, کوئی تو ہلو یار, کچھ تو کرو. یاد رکھنا, ناراض نہیں ہونا میری بات, میں بڑی سخت بات کرنے والا ہوں. مجھے یہی لگتا ہے کہ 6-7 مہینے سال کے بعد ہماری ماؤں اور بہنوں پہ روڈوں پر مانگنا پڑے گا. ہماری مائیں اور بہنیں ہمارے ساتھ کمائیں گی تو ہمارا گھر چلے جائے گا, ورنہ نہیں چل سکے گا گھر. مجھے ایسا لگتا ہے. اور ہم سرائکی لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں. جسم کی چمڑی چلی جائے گی سر, گردہ بیچ دیں گے, ہماری عورت گھر سے باہر نہیں جاتی. بہرحال اگر یہ چیزیں روکنی ہیں تو کس نے؟ آپ نے, میں نے, ہم نے. میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بھروسہ رکھیں. ٹرولرز پر یا جو بکواسیات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہر زمانے میں ہوتے. کیا میرے نبی کے زمانے میں لوگ نہ تھے؟ اور میں نے الفاظ سے آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا ہے. یاد رکھیے گا میرے نبی نے تبلیغ کر کے دنیا تبدیل کی ہے. جنگا تو بعد ہی چھوڑیاں یارا. اب میرے پاس آؤ, مجھے ملو, میرے پاس بیٹھو, میری باتیں سنو, دین آپ اس کے بعد فیصلہ کریں کہ یار کیا کرنا ہے. اپنے بچوں کو بھیجو, اپنی زندگی تبدیل کرو. لوگ یہاں پہ آتے ہیں, خدا کی قسم تیسرے دن رو کے جاتے ہیں, اولک تیرے گھر سے جانے کو دل نہیں کر رہا یار. بھروسہ رکھیں مجھ پہ, رب پہ بھروسہ رکھیں. باقی آپ بہتر جانتے ہیں کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے. میں اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے خدا را کچھ کرنا چاہتا ہوں. میرا ساتھ دو. ساتھ کتنا دینا ہے؟ پیسے مانگتا ہوں؟ نو وے. سپورٹ چاہیے آپ لوگوں کی. آپ ویڈیوز کو شیئر کیا کرو. آپ کچھ ایسا کرو, ننگی ناچتی ویڈیو, جو ننگی لڑکی کھڑی ہے, جو جسم ہلا رہی ہے, جو ایسے ایسے کر کے ڈانس کر رہی ہے, 1 ملین لائک. جو اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے. میں جانتا ہوں 6 مہینے سال بعد پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. ابھی تو 2 نا ساتھ یار. میں اپنے جوانوں کے لیے, اپنے نوجوانوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے. میری اکیڈمی میں لڑکیاں آتی ہیں نا, پہلی بات ہے میں کوشش کرتا ہوں اوائڈ کروں. خدا کی قسم کسی اسٹوڈنٹ, اللہ کرے کہ میری کوئی اسٹوڈنٹ نیچے لکھ دے, سوائے بیٹی کے اور لفظ ادا نہیں کرتا آپ کا یہ شعر استاد. جی میری بیٹی, ایسے کر کے بات کرتا ہوں. بہرحال بہت ساری باتیں, شاید ابھی بھی کچھ سوالات رہ گئے ہوں گے. اور میں چاہوں گا کہ ایڈریس ہے میرا, جب بھی ضلع بکھر ہے, یہ ضلع بکھر مین سٹی میں اتریں, اڈے پر اتریں یا جھنگ موڑ پر, یہ 2 جگہیں ہیں. دونوں جگہوں پہ بس رکتی ہے یا جو بھی چیز, اڈے پہ اتر جائیں, ڈزنٹ میٹر, یا جھنگ موڑ. یہاں پہ اتر کسی بھی رکشے والے کو بولیں, 1-2-3 رکشے والے کے پاس چلے جائیں کہ یار سبطین اولک کی اکیڈمی جانا ہے جو بسم اللہ ولاز کے اندر ہے. وہ کہے گا جی, اگر وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں پتہ,
تو آپ انہیں کہتے ہو کہ جناب پرانی مال مویشی منڈی لگتی تھی اور سدرہ شریف کا دربار بھی ہے وہاں پہ. جیسے ہی آپ وہاں پہ آئیں گے تو بسم اللہ ولاز کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا, اور وہاں انٹر ہونے سے پہلے کریانے کی بڑی سی دکان ہے, آپ انہیں سے پوچھ لو گے کہ سفیان بھائی, وہ کہیں گے یہ پہلا موڑ مڑو گے تو یہ اکیڈمی ہے اس کی. باہر میرا بلو رنگ کا پینافلیکس لگا ہوا ہے, اس میں ایک طرف میری تصویر ہے اور دوسری طرف ہماری ماں کی تصویر ہے, مریم نواز صاحبہ کی. اور ساتھ ہی آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ خدا را یہاں پر آئیں, آپ پہلے ایڈوانس بتا دوں 5000 ہر حال میں آپ کو فیس دینی پڑے گی. آپ اس کی رعایت, کیونکہ میں نے وہاں پہ حلف لیے, میں اپنا حلف نہیں توڑ سکتا. سیکنڈ, آپ کو رہائش اپنی رکھنی ہوگی, آپ نے کھانا اپنا کھانا ہے, اور ساتھ آپ کے پاس موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے, دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہے آپ لے کے آ جائیں. لیپ ٹاپ ہے تو اچھی بات ہے, آسان ہو جاتا ہے, اور موبائل ہے تب بھی اوکے. تو تقریباً لگ بھگ 3 سے 4 ہزار روپے آپ کا رہائش کا لگ جانا ہے 3 دن کا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور اتنا ہی آپ کا کھانے کا لگ جائے گا, اور 5-1 ہزار آپ کی فیس. لگ بھگ 15-1 ہزار سے 20 ہزار اگر آپ کی جیب میں ہے نا, آپ آ سکتے ہو. یہ آپ کا خرچہ ہوگا اگر آپ کہیں بھی پاکستان سے باہر سے آتے ہو. اب ڈائریکٹ اپنا نمبر بتا رہا ہوں, کیوں آپ ابھی تک بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہو, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. سو دیٹس وائی میں اپنا نمبر بتا رہا ہوں, پرسنل نمبر دے رہا ہوں, پرسنل ہی سمجھ لیجیے سر. 0330 0303 1635 231 0330 1635 231. آپ اس پر وہی بندہ رابطہ کرے گا جس کو شوق ہوگا کام سیکھنے کا, اور مجھے امید ہے کہ آپ لازمی آئیں گے جی, سیکھیں گے انشاءاللہ. اسے لمبی چوڑی بات کرنی نہیں چاہیے. آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھی ہے کس طرح سے اکیڈمی چل رہی ہے, جو کچھ بنا سکتا تھا. اور آئیے سر, موسٹ ویلکم. میرے دادا وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بیٹی کی عزت, بہو بیٹی کی عزت اور گھر آئے مہمان کی عزت برابر ہوتی ہے. حتاً کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کو حد سے زیادہ عزت دی جائے. اتنے بلک میں جب 500-400 لوگ ہوتے ہیں تو چیزیں مائنر سی رہ جاتی ہیں, اس پہ آپ ناراض نہیں ہونا. اور کوشش ہوتی ہے کہ میں ایز اے انفلوئنسر خود بیچ میں کھڑا ہو کے آپ لوگوں کی سپرویژن کروں. اللہ بہتر کریں گے سر. امید ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے, کو جوائن کیجئے, مزہ آئے گا سر. لو یو ہو گیا.